Okay, so the recording has begun, and now we can basically start. Okay, so the today's first topic is inferences for other estimators. Window plus not, and I'm going to start with Notepad so that you can write some stuff there that you can see. Okay, so we are starting with inferences for other estimators. Okay, so far we have made inferences for our population mean, which was mu, right, for population mean. And we usually have data from one sample, right? Uh, we had one particular sample based on which we got our, what do we call it, the point estimator, right? The estimate point, or the, in other words, we call it uh, the point of interest, right? So we have a particular sample on the basis of which we find a sample mean, sample standard deviation, and use these values to be able to say something meaningful about the population parameter, which is mean. That's what we have studied till now, right? However, the methods that we are learning are not limited to just population mean. For example, we have learned to calculate confidence interval. Also, we have learned to do hypothesis test on it, right? So these things are not limited to just population means. We can actually use these same methods, the method to calculate CI or the testing of hypothesis for other estimators as well. And uh, these same methods can be adopted for actually not just the mean or the other estimators that we are going to study in this class. Um, these methods for CI and hypothesis test can be adapted for any estimator that has a nearly normal distribution. So if we can have an estimator, if we can produce an estimator which can produce a nearly normal distribution, then we can apply the center limit theorem on it, and we can calculate a confidence interval for it for a particular significance level, and we can also do some kind of hypothesis test on it. Okay, so one of the examples that we are working with, as I told as I told you, is mean. So we have been working with mean, which is represented by mu. The another one could be the difference of the mean. Yes, I told you a few seconds ago. Another estimator could be difference of means. It can be represented as x bar 1 minus x bar 2. So we can compare two means, and for all the samples for all different samples on the basis of which we are getting x bar 1 and x bar 2, which is the mean 1 and mean 2, we can find a difference for all of them, and we'll observe that the difference is ultimately going to be a nearly normal distribution. So this is something that I want you guys to try, because mathematically it is clearly visible that if we have two different samples, and we are taking them many samples of uh, those two things, or those two interests, or those two targets, and we find the difference between their estimators, such as mean, then the difference between the mean, if you plot a sample distribution for this x bar 1 minus x bar 2, then we are going to obtain a normal distribution, almost a normal distribution. And since it is a normal distribution, we can apply central limit theorem to it, and then we can find confidence interval, and we can also find do some kind of hypothesis test on it as well, right? So this is basically used for comparing two means. So as I told you, we'll be studying ANOVA for that as well, right? Comparing two means. The another estimate could be a sample proportion, right? Sample proportion, sample proportion. It is represented as p hat, p underscore hat. So uh, this is another way. For example, many times instead of giving you the size of the sample, they are going to say 33% of the people in this university
watch a particular show, let's say Friends. So 33% of the people watch Friends. So for questions like those, we do not have a direct mean or direct other instances available to us. What we can use instead of mean and other stuff or other estimator is a sample proportion, because it is already given in the question. So it is represented by p hat, and as it turns out, even the sample proportion is nearly normal distributed, and hence it can be used as an estimator to calculate confidence interval and do some kind of hypothesis test on it. And since sample proportion is normally distributed, therefore the difference of central of sample means is also going to be normally distributed. So difference of mean can also be used as an estimator. So we can say p underscore hat 1 minus p underscore hat 2. So, okay, so even the difference can also be used as an estimator. So besides mean, we'll be comparing two means. We'll be using proportion, and we'll be using a difference of the proportion. Okay, difference of the of proportion as estimators for doing analysis. Okay, so depending upon what kind of data we have, in what format do we have, depending on that, we are going to decide which kind of estimator that we are going to use for making our inferences or for doing any kind of hypothesis test. Okay. An important assumption about any point estimate is that they are unbiased. So we are talking about doesn't matter which kind of estimator it is. Every time we have a sample, every time we take a sample for some kind of testing, we always take out the point estimate from it, right? अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे, तो जो सैंपल होता था वहां से अपना पॉइंट एस्टिमेट कैलकुलेट किया करते थे, जैसे कि जब हम हाइपोथेसिस टेस्ट कर रहे थे मीन के लिए, तो म्यू यूज टू बी आवर पॉपुलेशन पैरामीटर एंड एक्स बार यूज टू बी आवर सैंपल पैरामीटर एंड एक्स बार यूज टू make up for our point estimate, right? Because it was taken from the sample which was in question there, right? So the important assumption about those point estimates is that they are unbiased. और unbiased होने का मतलब ये है कि जो sampling distribution है उसका जो mean है, ठीक है, जो सेंटर याद हो तो मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसमें सभी मीन का अगर आप मीन कैलकुलेट करोगे तो आपको पॉपुलेशन का मीन मिल जाएगा, एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ अनबायस्ड, कि अगर आप अपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का सेंटर पता करोगे, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के मीन का सेंटर जो मीन का सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आपने प्लॉट किया है, अगर आप उसका भी मीन अगर आप प्लॉट करोगे या फिर फाइंड करने की कोशिश करोगे तो वो आपको हमेशा ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर के बराबर मिलेगा, यानी कि एक्स बार का भी एक्स बार अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको म्यू मिल जाएगा विच इज द पॉपुलेशन मीन, ठीक है। एंड दिस इज अ क्लियर साइन ऑफ द फैक्ट दैट योर पॉइंट एस्टिमेट इज अनबायस्ड, इसमें किसी तरह का कोई बायसनेस नहीं है, किसी तरह का फेवर और अनफेवर किसी चीज के लिए नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये भी हो गया कि इट an unbiased estimator does not naturally over or underestimate the parameter, it provides a good estimate for it, ठीक है। तो जब आप x मीन का x जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप मीन का प्लॉट करते हो और उसका भी मीन कैलकुलेट करते हो तो आपको एग्जैक्टली exactly हमेशा पॉपुलेशन मीन नहीं मिलता, हल्का फुल्का माइनर डिफरेंस हो सकता है उसके बीच में। और इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो एस्टिमेटर है जो कि अनबायस्ड है वो आपके पॉपुलेशन पैरामीटर को ना ही अंडर एस्टिमेट कर रहा है, यानी कि छोटी वैल्यू निकाल के दे रहा है, ना ही ओवर एस्टिमेट कर रहा है कि जो एक्चुअल ट्रू पॉपुलेशन मीन है उससे बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू दे रहा है, ठीक है। ये हमेशा एक गुड एस्टिमेट की तरह काम करेगा कि ओके दिस इज अ रियली गुड एस्टिमेट, ऑन द बेसिस ऑफ इट वी कैन मेक सम काइंड ऑफ डिसीजन, इट्स गुड इनफ काइंड ऑफ थिंग, ओके। तो सैम्पलिंग मीन अब हमें समझ में आया कि एक अनबायस्ड एस्टिमेटर है, लेकिन क्या हमारा डिफरेंस ऑफ मीन भी अनबायस्ड एस्टिमेटर होगा, या फिर क्या हमारे पास जो सैंपल प्रोपोर्शन होगा वो भी एक अनबायस्ड एस्टिमेटर होगा? और डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन, आपका क्या विचार है इसके बारे में? मीन तो अनबायस्ड एस्टिमेटर हो गया, पर बाकी तीनों क्या अनबायस्ड एस्टिमेटर होंगे, या फिर तीनों में से कोई एक भी ऐसा है जो कि अनबायस्ड नहीं बायस्ड होगा?
You can write your answers, you can speak your answers. Shino, Shivali, Kajal, Sakshi, Nisha, Mehak, Ishika, Devisha, Sati, Indra, Deepika. Okay, somebody needs to answer. Although I would actually like if most of you answer, all of you answer actually. So according to you, is proportion or difference of proportion or difference of mean, are they also unbiased, or is there any probability, or is there any chance that they are biased? And if it is, which one it is? My gosh, you people seriously don't answer any time. This is a really bad habit that most of the students at Lakshmi College have. Not a good idea. Never ever. स्वाति, are you going to answer कि इनमें से कोई अनबायस एस्टिमेटर है या नहीं है? Okay. नाम लेने के बाद जवाब आया. Yes, sample mean is an example of unbiased point estimate. तो इसी तरीके से अब asking कि difference of sample mean or proportion or difference of proportion, are they also unbiased point estimate? That's the question. How would you approach uh, to answer this question basically, because it's not that difficult if you have understood normal distribution, if you have understood confidence interval, if you have understood how do we calculate z score, and how why do we do that, and how do we calculate confidence interval for any kind of data. If you are clear with that, then you should be able to answer this particular question. The expected value of sample mean is not new. How should I say? The mean of sample mean. Okay, what happens is when we take sample from a population, we do not take just one sample, right? We take for, let's say we're talking about a size of 100, so we take thousands of samples there, right? And from thousands of samples we calculate mean for each one of them, so we have thousands of mean. Now if we take mean of those means, then it is supposed to be uh, as close to or equal to the population mean. So yeah, you can call it that, but I wouldn't say directly mu. Okay, it will be close to mu or mu. It has to be mu. That's what the expectation is. Okay, so sample mean is unbiased, but the question is not about sample mean. Sample mean का जवाब तो मिल गया था. The question is about population. Sorry, difference of sample, difference of means, and difference of proportions and proportion itself. The question is for those three. Are they also unbiased? I'm going to take the names if you are not going to answer this. I mean, without I mean yourself. Division left the meeting. Shivali, what do you think? Are they going to be unbiased as well?
Or if they are unbiased, then what could be the reason behind it? सर कोई आइडिया नहीं है। जो मीन है वो अनबायस एस्टिमेटर क्यों है, ये समझ में आया आपको? ये बात किसको समझ में आई है? जिसको समझ में आ गई है वो जवाब दे दे एटलीस्ट। जिसको समझ में नहीं आया है उसको तो दोबारा समझाना पड़ेगा। ओके, लेट मी गो ऑन पेपर। ओके, देखो, अनबायस एस्टिमेटर का मतलब क्या हुआ? अगर आपको याद हो, अब से 4 क्लास पहले हमने सैंपल्स लिए थे, ठीक है? तो हमने क्या किया था, हमारे पास कुछ पॉपुलेशन है, ठीक है? कुछ पॉपुलेशन है, इसमें से हमने क्या किया, सैंपल निकाले, ठीक है? तो यहाँ से निकाला हमने सैंपल नंबर 1 निकाला हमने, राइट, S1। एंड उसी तरीके से फिर हमने उसके ऊपर से और भी सैंपल्स निकाले, राइट। सैंपल नंबर 2, सैंपल नंबर 3, सैंपल नंबर n तक निकाला हमने, राइट, S2। ऐसे करते हमने बहुत सारे सैंपल्स लिए। हर एक सैंपल का फिर फर्दर हमने क्या कैलकुलेट किया, उनके लिए मीन कैलकुलेट किया, ठीक है? तो इसका हो गया x1, ठीक है, इसके लिए हो गया x2, और इसी तरीके से xn हो गया, ठीक है, और सैंपल नंबर xn, ठीक है, Sn के लिए। तो हमारे पास बहुत सारे सैंपल हो गए और सभी के मीन हो गए। अब सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में होता क्या है, हम ये जो x1 x2 xn है ना, ये x1 से लेकर के xn तक हम इसको प्लॉट करते हैं, राइट। इसका इसका हम लोग डेंसिटी प्लॉट बनाते हैं या फिर हिस्टोग्राम प्लॉट करते हैं, राइट, या फिर हम इसका बॉक्स प्लॉट करते हैं, राइट। हम इन तीनों मेथड के थ्रू या फिर किसी इनमें से किसी भी मेथड के थ्रू हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखने की कोशिश करते हैं, और हमें मालूम पड़ता है अक्सर, अगर आपका सैंपल साइज लार्ज इनफ है और आपका पॉपुलेशन ज़्यादा स्क्यूड नहीं है, और स्क्यूड है भी तो अगर सैंपल साइज लार्ज इनफ है, तो हमें मालूम पड़ता है कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन है, वो कैसा है, वो है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। दिस इज व्हाट सेंट्रल लिमिट थ्योरम टेल्स अस। और क्योंकि सेंट्रल लिमिट थ्योरम की कंडीशंस को, जो भी हमारा टास्क जो भी हम कर रहे हैं, इन क्वेश्चन टास्क जो है अगर उसको कर रहे हैं, अगर वो सीएलटी थ्योरम की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो उन सभी के लिए ये चीजें आपको हमेशा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ ही लेके आएंगे, सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन को। नाउ जब आपका सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तो अब मैं क्या कह रहा हूँ कि अनबायस्ड होने का मतलब यहाँ से कैसे समझो। देखो, अनबायस्ड वो तब होगा जब मैं मीन निकालूं, अगर मैं x1 जो मेरा मीन आया था प्लस x2 सैंपल 2 का मीन प्लस सैंपल 3 का मीन, ऐसे करते हुए मेरे पास एक्स एन तक आया, ठीक है। मैंने सबको सम किया और उनका भी मीन निकाल दिया, ठीक है। मीन का भी मीन जो मैंने कैलकुलेट किया, डिवाइड किया इसको एन से, क्योंकि एन है हमारे पास, तो मेरे पास अब जो आना चाहिए वो होना चाहिए पॉपुलेशन मीन ऑलमोस्ट, ठीक है। एग्जैक्टली तो वही होना चाहिए मैथमेटिकली, पर हाँ उसकी रेंज में होता है, मतलब ऑलमोस्ट म्यू के बराबर होता है वो हमेशा, और कभी कभी म्यू के बराबर ही हो जाता है एग्जैक्ट, ठीक है। तो अनबायस एस्टिमेटर होने का मतलब भी यही हुआ कि आपका जो सैंपल है वो आपको एक ऐसा पॉइंट एस्टिमेट दे रहा है, यानी कि आपको जो x1 x2, अगर आप सिर्फ एक सैंपल लेते हैं और जैसे पूरे सैंपल नंबर 1 है, तो x1 आपका एक ऐसा पॉइंट एस्टिमेट है, ठीक है। आपका एक ऐसा पॉइंट एस्टिमेट है जो कि जब आप कॉन्फिडेंस इंटरवल आप कैलकुलेट करते हो, या फिर जब आप उस पॉइंट को अपने ग्राफ पे देखते हो, तो आपको हमेशा, ठीक है, तो आपका जो मीन है वो हमेशा जो पॉपुलेशन का मीन है वो हमेशा सेंटर में होगा। यानी कि अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करते हो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला ग्राफ, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो सेंटर होता है वो मीन होता है। तो इस पॉइंट एस्टिमेट वाले के लिए जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे, तो आपको मालूम पड़ेगा कि इसका जो मीन है वो ही पॉपुलेशन मीन के बराबर है ऑलमोस्ट।
और अगर वो पॉपुलेशन मीन के बराबर आ रहा है, उसके आस बहुत क्लोज है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो पॉइंट एस्टिमेट है, जिसको जिसके थ्रू हम काम कर रहे हैं, वो हमारे पॉपुलेशन मीन को के लिए एक अच्छा एस्टिमेटर है, इट्स अ गुड एस्टिमेट एंड हेंस इट इज अनबायस्ड। ठीक है, तो इस वजह से हमारा मीन अनबायस है, क्योंकि वो अपने पॉपुलेशन पैरामीटर का आइडिया बहुत अच्छा दे रहा है। तो इसी तरीके से मैंने पूछा कि जो डिफरेंस ऑफ मीन है, डिफरेंस ऑफ मीन, प्रोपोर्शन और डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन, क्या ये तीनों भी या इन तीनों में से कोई भी ये भी क्या अनबायस एस्टिमेटर हो सकते हैं इसी अप्रोच के साथ? अब आपको जवाब देना है इस सोच के साथ, इस अप्रोच के साथ। तो आई होप नाउ यू हैव समथिंग टू आंसर। सर यस। सर डिफरेंस ऑफ मीन जो है वो अनबायस्ड हो सकता है। ओके, अनबायस हो सकता है, वजह? सर जैसे कि आपने बताया कि जैसे कोई भी जैसे हमने मीन लिया है, तो हम्म। जैसे वो एक मिनट, अ, एक मिनट सर, एक मिनट। सर जो डिफरेंस ऑफ मीन होगा ना, वो हम्म। एग्जैक्टली जो पॉपुलेशन मीन होगा उसका इक्वल, मतलब नियर बाय हो सकता है जो ऐसा। पॉपुलेशन का हमारा डिफरेंस ऑफ मीन होगा उसके बराबर होगा लगभग। ठीक है, तो जब हम डिफरेंस ऑफ मीन की बात कर रहे हैं, तो जो हमारा सैंपल के लिए डिफरेंस ऑफ मीन है, ठीक है, वो हमारा एक अच्छा पॉइंट एस्टिमेट होगा हमारे पॉपुलेशन के डिफरेंस ऑफ मीन के लिए। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर। ठीक है, और इसी तरीके से प्रोपोर्शन के लिए, जैसे मीन के लिए हमने बोला, उसी तरीके से प्रोपोर्शन के लिए भी है, और जिस तरीके से डिफरेंस ऑफ मीन के लिए, उसी तरीके से डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन के लिए भी है। हालांकि इन चीज़ों को आपको विजुलाइज करके देखना होगा, और ये मैं करा सकता हूँ, बट आई एम गोइंग टू लीव इट फॉर यू गाइस सो दैट यू गाइस डू समथिंग 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 एंड लर्न फ्रॉम इट। तो मैं चाहूँगा कि जितना भी डेटा आपको दिया गया है, उसमें आप दो सैंपल ड्रॉ करें एक साथ, और दोनों के मीन का डिफरेंस निकालें। ठीक है, x1 माइनस x2, उसको एक लिस्ट में सेव करें, और फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट करें, जैसा कि हमने पहले भी किया हुआ है, और वो आपको ये चीज़ एग्जैक्टली सिखाई हुई है। तो इस बार आपको एक नहीं, दो सैंपल लेने हैं एक साथ, दैट्स द ओनली डिफरेंस दैट यू हैव टू मेक। ठीक है, तो आई होप कि यू गाइस एक्चुअली डू इट एंड मेक थिंग्स क्लियरर फॉर योरसेल्फ। ओके, तो अब पता करते हैं कि कॉन्फिडेंस इंटरवल कैसे कैलकुलेट करेंगे फॉर नियरली नॉर्मल एस्टिमेट। ये जो बाकी तीन हमने एस्टिमेट पढ़े हैं, ये सारे नियरली नॉर्मल एस्टिमेट्स हैं हमारे। तो अगर मुझे कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेट करना है इनके लिए, तो तरीका क्या होना चाहिए? और मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि तरीके में कोई बदलाव नहीं होगा, एज लॉन्ग एज दे आर नियरली नॉर्मल। ठीक है, और नियरली नॉर्मल एस्टिमेट, कौन बताने वाला है कि कॉन्फिडेंस इंटरवल का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कॉन्फिडेंस इंटरवल? ममता, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कॉन्फिडेंस इंटरवल? इज ममता हियर टुडेज क्लास? सरप्राइज, शी नॉट हियर। Z say okay, Z is not enough, Z is not enough, Z होता है उसमें, ये बात तो है बिल्कुल। शनोवर, व्हाट इज द फॉर्मूला? प्लस माइनस, या सेट प्लस माइनस, कुछ ये भी होता है, बिल्कुल प्लस माइनस की जरूरत होती है उसमें। जो भी हमारा पॉइंट एस्टिमेट होता है, जैसे कि हमने वहां पे पढ़ा था मीन के वक्त, तो हमने एक्स बार लिख दिया था यहाँ पर। ठीक है, तो अभी हम जनरल फॉर्मूला लिख रहे हैं, पॉइंट एस्टिमेट प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस जेड विच इज द कॉन्फिडेंस इंटरवल, हमने कितना कितना सिग्निफिकेंस लेवल में चाहिए उसके, राइट।
तो अगर मुझे 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल चाहिए तो उसके लिए जी स्कोर जो भी होगा, जी इंटू इंटू क्या होगा इसमें, स्टैंडर्ड एरर। आप ये कर दोगे तो आपको हमेशा पॉइंट एस्टिमेट प्लस माइनस जेड स्कोर मिल जाएगा। आपको एक लोअर और एक आपको हायर वैल्यू मिल जाएगी, जिसके बीच का जो इंटरवल है वो आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल बन जाता है, राइट। तो आई होप कि ये फॉर्मूला जनरली आप लोगों को क्लियर हो, क्योंकि हम इसका इस्तेमाल बार बार करने वाले हैं, ठीक है। और अगर आप कहीं भी जाओगे तो ये तो इतना कॉमन और सिंपल फॉर्मूला है, अगर आप स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल कर रहे हो किसी भी तरह के डिसीजन मेकिंग में, आप अगर इन्वॉल्व हो और उसके वेरिफिकेशन में, या फिर आप एमबीए वगैरह करते हो, तो कभी ना कभी आपको रेदर इसकी ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए प्रॉपर्टी, ठीक है। तो और इतना याद होगा शायद आप लोगों को कि इस हिस्से को हम लोग मार्जिन ऑफ एरर बोलते हैं, Z इंटू एस ई, राइट। ये हमारा मार्जिन ऑफ एरर है। तो मार्जिन ऑफ एरर के दो हिस्से हैं, एक है Z जिसको हम क्रिटिकल वैल्यू बोलते हैं यहाँ पर, और एक है हमारा एस ई, ठीक है, विच इज द स्टैंडर्ड एरर, ठीक है। और जो ये हिस्सा है, ये आगे अभी देखोगे कि इसको टेस्ट स्टैटिस्टिक्स भी बोलते हैं, जो कि लास्ट क्लास में ही बताया गया था आप लोगों को। चलो एक प्रैक्टिस क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि चीज़ें हो क्या रही हैं और कैसे हो रही हैं, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू राइट ए क्वेश्चन हियर एंड वी आर गोइंग टू ट्राई टू सॉल्व इट, ओके। तो मैं चाहूँगा कि आप भी अपनी तरफ से पेन और पेपर निकाल लो और स्टार्ट करो इस चीज़ को, ठीक है। पेन और पेपर निकालो, क्वेश्चन देने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू गिव यू हिंट्स हाउ टू सॉल्व इट एंड देन आई एम गोइंग टू गिव यू सॉल्यूशन एज वेल, ओके। बट before that you have to solve it yourselves. In 2010, Pew Research Foundation indicated that among 1099 college graduates, 23% watch the Daily Show. ठीक है, the standard error, the standard error for the estimate is 0.014, ठीक है। Estimate the 95% confidence interval for the proportion, ठीक है, of college students who watch the daily show। तो इसके लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेट करना है। आप लोगों को क्वेश्चन में सैंपल का साइज गिवन है 1099। आप लोगों को स्टैंडर्ड एरर भी गिवन है। आप लोगों को 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल दिया हुआ है, और आप लोगों को एक डेटा दिया हुआ है 33% वॉच द डेली शो। तो इसके बेसिस पे आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होगा, आप लोग कैलकुलेट करके बताएं। फॉर्मूला आप लोगों के सामने है, सब कुछ क्वेश्चन में गिवन है। आप डिसाइड करेंगे कि आपका इसमें एस्टिमेट कौन सा है, उसका नाम क्या है एस्टिमेट का, राइट। लेट मी नो दैट एंड उसके बेसिस पे आप जो कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेट कर रहे हो आप वो भी बताओगे। एंड आई एम गोइंग टू गिव यू ओनली 2 मिनट्स, क्योंकि ये एक लाइन का ही है इसका जवाब एक्चुअली में। Write your answers in the comment box, or you can answer it using the audio as well.
Okay, has anyone come up with the solution yet? Shinover, have you got the solution? Kajal, Shivali, Nisha, Yukti, Tonika, Swati, Geetika, Ishika, anybody? Anybody is कोई भी है जो कि okay, we have got okay, कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है निशा, तो आपने एक पार्ट तो सही निकाल दिया है 0.357 गुड एंड व्हाट वुड बी द अदर वैल्यू फॉर द कॉन्फिडेंस इंटरवल? Nope, it won't be 0.33. It will be something lesser than that. Okay, let's have a look at the solution to this question once. Okay, then you guys try it yourselves. ठीक है, तो हमारे पास इसमें जो क्वेश्चन में गिवन है एस्टिमेट विच इज इट इज अ प्रपोर्शन 33% कॉलेज, मतलब 33% कॉलेज स्टूडेंट की बात की है उन्होंने, एक प्रोपोर्शन दिया हुआ है कि इतने परसेंट लोग हैं आप लोगों को, ठीक है, जो कि एक शो है द डेली शो, उसको देखा करते हैं। तो हमारे पास क्या है, पी अंडर स्कोर हैड इज इक्वल्स टू 0.33, राइट। वी डोंट यूज द नंबर एज इट इज, हम उसका फ्रैक्शन में इस्तेमाल करते हैं 0.33, ठीक है, हम लोग परसेंटेज में इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो 0.33 लिया हमने और हमें स्टैंडर्ड एरर गिवन है क्वेश्चन में विच इज 0.014, राइट, ठीक है। और कॉन्फिडेंस इंटरवल का फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है, ऑलरेडी गिवन हुआ है हमें, गिवन है हम लोगों को, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू यूज द सेम फॉर्मूला अगेन एंड यहाँ पे पॉइंट एस्टिमेट की वैल्यू क्या है 0.33, तो आई एम गोइंग टू रिप्लेस पॉइंट एस्टिमेट विद 0.33 एंड आई एम गोइंग टू रिप्लेस स्टैंडर्ड एरर विद दिस वैल्यू, ठीक है। तो स्टैंडर्ड एरर को रिप्लेस कर दिया मैंने इसकी वैल्यू से, और क्योंकि हमें 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल चाहिए और 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए एग्जैक्ट जो वैल्यू होती है वो होती है 1.96, ठीक है। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस माइनस निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे लिए कुछ 0.33 प्लस माइनस 0.027, ठीक है। तो अगर मुझे लोअर लिमिट निकालना है तो मैं इसमें से माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो लोअर लिमिट निकालने के लिए मैंने क्या किया, 0.33 माइनस 0.027, अब अपर लिमिट के लिए 0.33 जो हमारा पॉइंट एस्टिमेट है प्लस 0.027, राइट, दिस विल बी आवर कॉन्फिडेंस इंटरवल, ठीक है। अब इसको प्लस माइनस कर देंगे और हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर्म हो जाएगा। तो हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल निकल के आया 0.357, सॉरी 0.303 से लेकर के 0.357, तो ये हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल निकल के आया। और इसका मतलब क्या हुआ कि 30.3% से लेकर के, ठीक है, 35.7% तक का जो कॉलेज का प्रोपोर्शन है वो इस शो को देखता है। तो इसका मतलब ये है कि जो पॉपुलेशन का मीन है, जो ट्रू मीन है, वो 30.3 से लेकर के 35.7 के बीच में कहीं लाई कर रहा होगा, ठीक है। इट कुड बी 30.3 itself और 35.7 itself, और इट कुड बी एनी नंबर इन बिटवीन दिस, ठीक है, एनी वैल्यू इन बिटवीन दिस। तो ये हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल हो गया, ठीक है। अब देखते हैं कि हाइपोथेसिस कैसे अप्लाई करेंगे। तो होगा कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालने का तरीका जो कि हमने बोला था कि जैसे पहले था उसी तरीके से है, देयर इज नो चेंज टू इट। अब देखते हैं कि हाइपोथेसिस फॉर्म करने का तरीका क्या है, ठीक है। तो थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग फॉर nearly normal estimates. Okay, so अगर आपको याद हो तो मैंने पहले भी बोला था कि हम
सेम फ्रेमवर्क या फिर सेम मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं एज लॉन्ग एज दे आर नियरली नॉर्मल। तो पुराना मेथड हमारे लिए क्या था कि हम एक टेस्ट स्टैटिस्टिक कैलकुलेट करते थे, ठीक है, जो कि यहाँ पे z था, राइट। तो z इज इक्वल्स टू क्या होता था, पॉइंट एस्टिमेट जो भी है हमारा, ठीक है, माइनस नल वैल्यू, ठीक है, जो भी नल वैल्यू हमने क्वेश्चन में ली हुई थी, राइट। और उसको हम डिवाइड कर देते थे स्टैंडर्ड एरर्स के साथ, राइट। दिस यूज टू बी आवर टेस्ट स्टैटिस्टिक वैल्यू, राइट। तो वही मेथड हम यहाँ पे भी डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं एंड देयर इज नो डिफरेंस टू इट, क्योंकि पॉइंट एस्टिमेट हमारे पास अगर प्रोपोर्शन में है तो वो फ्रैक्शन में आ जाएगा, नल वैल्यू भी उसके अकॉर्डिंग ही गिवन होगी हम लोगों को, राइट। नल वैल्यू भी प्रोपोर्शन के फॉर्मेट में ही होगी, स्टैंडर्ड एरर हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। तो एज लॉन्ग एज स्टैंडर्ड एरर हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, यूजिंग जी स्कोर, ठीक है, टी स्टैटिस्टिक की जरूरत नहीं है। तो इसको भी करने के लिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन उठाते हैं और हाइपोथेसिस कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं फॉर वन ऑफ दीज एस्टिमेट्स, ठीक है, जिससे कि चीज़ें क्लियर रहे कि अप्रोच कैसे करना है इसको, ठीक है। द थर्ड एंड हैंस, ठीक है, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली विच कलेक्ट्स बॉडी फैट परसेंटेज, ठीक है। तो द थर्ड एनहेंस कलेक्टेड बॉडी फैट परसेंटेज, जिसको हम शॉर्ट में रेफर करेंगे बीएफ परसेंटेज के नाम से, ठीक है, एंड जेंडर डेटा फ्रॉम 13,601 सब्जेक्ट्स एज्ड 20 to 18, ठीक है। द एवरेज पीएफ परसेंटेज फॉर 65,080 men in the sample was 23.9 percentage, 23.9, okay, not percentage, and the value for was 35, ठीक है, was 35.0 for women, ठीक है। वुमेन का नंबर कितना है, 7021 वुमेन, ठीक है। द स्टैंडर्ड एरर फॉर द डिफरेंस, ठीक है, between the average male and female body fat percentage was 0.114, ठीक है। Now the question is, do these data provide convincing evidence that men and women have different average body fat percentage, ठीक है। ओके, क्वेश्चन में एक चीज अलग से दी हुई है कि यू मे अज्यूम दैट द डिस्ट्रीब्यूशन of the point estimate is nearly normal। तो कंडीशन चेक करने वाला काम जो इन्होंने हमारा अपनी तरफ से सॉल्व कर दिया है, सैंपल साइज लार्ज इनफ है। तो अब मैं चाहता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को समझें और इसके लिए पहला स्टेप क्या होता है, हाइपोथेसिस, ठीक है। तो हाइपोथेसिस बनाएं, उसके बाद पॉइंट एस्टिमेट का पता लगाएं कि पॉइंट एस्टिमेट क्या है, थर्ड कंडीशंस चेक करते हैं हम लोग, उसके लिए इसमें बता ही दिया है। फोर्थ में हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ड्रॉ द स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ, और हम टेस्ट स्टैटिस्टिक कैलकुलेट करते हैं और फिर हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, right? These are the five step for doing any kind of hypothesis test, right? So मैं चाहूँगा कि आप लोग हाइपोथेसिस फॉर्म करें और मुझे बताएं कि आपने हाइपोथेसिस क्या फॉर्म किया है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। इट्स रियली गुड क्वेश्चन एक्चुअली, एंड आई वांट यू गाइस टू आंसर इन 2 minutes, क्योंकि हाइपोथेसिस फॉर्म करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए।
थोड़ा जल्दी जवाब देंगे आप लोग तो आप वी कैन स्टार्ट टी डिस्ट्रीब्यूशन टुडे. किसी का फॉर्म हो गया नल हाइपोथेसिस और एंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, क्योंकि एक भी फॉर्म हो गया तो दूसरा फॉर्म करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी. Nisha, what is the null hypothesis that you have used for this question? शिवाली, नल हाइपोथेसिस क्या फॉर्म किया आपने इस क्वेश्चन के लिए? I hope you guys are getting the voice. 58. क्या शिवाली क्या? 58. 58 क्या चीज? Null hypothesis. Okay, that's is it mu is equals to 11.1. Okay, 11.1. No, that cannot be an answer क्योंकि ओके आई थिंक कि आप लोग अभी तक क्वेश्चन को समझ नहीं पाए हो, तो मैं एक बार क्वेश्चन को फिर से लाता हूँ और फिर से रीड करता हूँ और उस पॉइंट पे पहुंचते हैं जो पॉइंट हमें मदद करता है डिसीजन मेकिंग में. मतलब जहाँ से हम लोग अपने हाइपोथेसिस फॉर्म करते हैं. अगर आपको कभी भी देखना है कि हाइपोथेसिस कहाँ से फॉर्म हो रही है, तो जहाँ पे इनकी इंफॉर्मेशन खत्म हो रही है और जहाँ पे सवाल शुरू हो रहा है वहाँ पे गौर करें. तो मैंने बोला है डू दीज डेटा प्रोवाइड कन्विंसिंग एविडेंस दैट मेन एंड वुमेन, यहाँ से देखो, दैट men and women have different average body fat percentage. और क्योंकि हमें इस चीज को टेस्ट करना है तो ये हमारा ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस बनेगा. ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या हो गया? men and women have different body average body fats, which means कि अगर मुझे अपना ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस फॉर्म करना है तो मैं क्या बोलूंगा? म्यू ऑफ men is not equals to म्यू ऑफ वुमेन. नाउ इसके बेसिस पे आप नल हाइपोथेसिस क्या लिख सकते हो? लेट मी नो स्ट्रेट अवे. ओके, नल हाइपोथेसिस क्या होगा आपका? नाउ दैट यू नो योर अल्टरनेट हाइपोथेसिस. It cannot be either positive align point one or negative align point one. Uh, I mean, as for the hypothesis setting, these values cannot be true. Uh, okay, what you are trying to do is basically calculate the point estimate, which is a different thing here. So let's get ahead with the. कौन बताएगा मुझे null hypothesis क्या है अब?
नाउ दैट वी नो कि alternate hypothesis क्या है, this is easier now, opposite होना चाहिए without any uh, anything common between them. तो अगर आप ध्यान से कोशिश करते हैं तो आपको मालूम होता है यहाँ पे कि नल हाइपोथेसिस क्या होना चाहिए कि म्यू मैन इज इक्वल्स टू म्यू ऑफ वुमेन, कि जो एवरेज बॉडी फैट परसेंटेज मैन का है वो वुमेन का भी होगा, ये मेरा नल हाइपोथेसिस बन जाएगा। और जो चीज़ मुझे टेस्ट करनी है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बॉडी फैट परसेंटेज, एवरेज बॉडी फैट परसेंटेज ऑफ मैन एंड वुमेन, ये मेरा ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस बन जाएगा, राइट। रिजेक्टिंग एच नॉट और नॉट रिजेक्टिंग इट, इट्स अ फार डिफरेंट थिंग, अभी अभी वहां तक पहुंचे नहीं है। उससे पहले हमें अपना पॉइंट एस्टिमेट भी कैलकुलेट करना होगा। तो अब बात आती है पॉइंट एस्टिमेट की। तो क्वेश्चन में पॉइंट एस्टिमेट एक्चुअली में आप लोगों को गिवन है, ऑलमोस्ट गिवन है, और ये आप लोगों को बताना है कि वो पॉइंट एस्टिमेट क्या है। यही वो चीज़ है जो कि युक्ति और निशा कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो व्हाट इज द एग्जैक्ट पॉइंट एस्टिमेट फॉर दिस क्वेश्चन? What is the point estimate for this question? और पॉइंट एस्टिमेट मालूम पड़ जाने के बाद चीज़ें थोड़ी सी और क्लियर हो जाएंगी यहाँ पर। -11.1 according to Nisha, right? Okay, so J value 23.9 -35, ये कहाँ से आई बाकी लोगों को समझ में आ रहा है? तो अभी निशा ने पॉइंट एस्टिमेट कैलकुलेट करने के लिए क्या किया है, एक्स, सॉरी एक्स बोल रहा हूँ, या एक्स, राइट, एक्स ऑफ मैन, ठीक है, एक्स बार मैन में से उसने क्या किया है, एक्स बार वुमेन को सब्ट्रैक्ट कर दिया है, ठीक है। और वुमेन में से मैन को क्यों नहीं किया, मैन में से वुमेन को क्यों किया, क्योंकि द क्वेश्चन क्लियरली इज आस्किंग फॉर इट कि एविडेंस दैट मैन एंड वुमेन हैव डिफरेंट एवरेज बॉडी फैट परसेंटेज, इसीलिए हमने मैन को पहले लिया और वुमेन को यहाँ पे बाद में लिया, ठीक है। हालांकि आप रिवर्स में भी ट्राई कर सकते हो, दिस थिंग विल वर्क, ओके, बट हमने इस प्रोसेस को फॉलो किया, ठीक है। तो एक्स बार मैन माइनस एक्स बार वुमेन, तो एक्स बार मैन कितना है, 23.9 है शायद, और वो है हमारे पास 35.0, ठीक है, विच मीन्स कि 11.1 हमारा पॉइंट एस्टिमेट बन गया नेगेटिव में, ठीक है। तो अगर मेरा पॉइंट एस्टिमेट, ठीक है, ये डिफरेंस ऑफ मीन है, तो मेरा हाइपोथेसिस जो फॉर्म हुआ है वो भी डिफरेंस ऑफ मीन में ही होना चाहिए, राइट, वो भी डिफरेंस ऑफ मीन में ही होना चाहिए। तो अब हम अपने हाइपोथेसिस को रीराइट भी कर सकते हैं, ठीक है। और रीराइट कैसे कर सकते हैं, अगर म्यू ऑफ मैन इज इक्वल्स टू म्यू ऑफ वुमेन, तो इसका मतलब क्या होगा कि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, अगर दोनों बराबर हैं तो दोनों का डिफरेंस 0 होना चाहिए। तो म्यू मैन माइनस म्यू वुमेन इज इक्वल्स टू 0। वी कैन रीराइट आवर नल हाइपोथेसिस लाइक दिस, अगर म्यू ऑफ मैन इज नॉट इक्वल्स टू म्यू ऑफ वुमेन, तो इसका मतलब ये हुआ कि म्यू ऑफ मैन में से म्यू ऑफ वुमेन को आप माइनस करोगे तो इट विल नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। म्यू ऑफ मैन माइनस म्यू ऑफ वुमेन, दिस थिंग विल नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी हैव करेक्टेड आवर हाइपोथेसिस दैट वी इनिशियली मेड। इनिशियली हमने जो बनाया था वो भी सही था, लेकिन इसका फॉर्मेट सही नहीं था, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इसका फॉर्मेट क्या है, डिफरेंस ऑफ मीन्स इसका फॉर्मेट है। तो इसका पॉइंट एस्टिमेट भी डिफरेंस ऑफ मीन से मिलेगा, इसका हाइपोथेसिस जो फॉर्म होगा वो भी डिफरेंस ऑफ मीन के थ्रू ही होगा, ठीक है। नाउ दैट वी हैव हाइपोथेसिस एंड पॉइंट एस्टिमेट। और तीसरी चीज हमें क्या बता दी गई है कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज नियरली नॉर्मल, ठीक है। और नियरली नॉर्मल है तो उसका सैंपल साइज इज इनफ, एंड सैंपल साइज इज लार्ज इनफ फॉर द डेटा, ठीक है, क्योंकि 6000 और 7000 लिया हुआ है मैन और वुमेन, विच इज क्वाइट गुड इनफ, राइट। तो
नाउ वी हैव आवर सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा स्टेप भी हो गया। अब चौथे स्टेप की बात करते हैं। चौथे स्टेप पे हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन को प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। अगर ये क्वेश्चन है मेरे पास और मुझे इसका डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट करना होगा, तो आप में से आप लोग अपने पेपर पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट बना सकते हैं और आप लोग उसको व्हाट्सएप पे जो ग्रुप है उस पर सेंड कर सकते हैं। तो इसको जल्दी से जल्दी करें कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, क्योंकि पॉइंट एस्टिमेट मेरा -11.1 है, ठीक है। मेरा जो नल वैल्यू का मीन है वो 0 है, और जो मेरा ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या है, नॉट इक्वल टू 0 रखी हुई है हम लोगों ने अभी, जिसको कि हम वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन कैसा बन के आएगा, क्या चीज़ सेंटर में होगी, क्या चीज़ नहीं होगी, इसका जवाब दें आप लोग। ओके, आप में से किसी ने तो डिस्ट्रीब्यूशन बना लिया होगा, इतने ने बना ही लेना चाहिए था। I'm going to send a picture to the group. Have a look at it, all of you. और आई होप कि आपको समझ में आए कि वो पिक्चर, वो डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा क्यों बन के आया हमारे पास। होप कि आप लोग डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं और इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये ही डिस्ट्रीब्यूशन क्यों आया हमारे पास, और हमने वैल्यू का ऐसे क्यों लिया हुआ है। नॉट एनीवन येट। Okay, it's not. It is already delivered now. So I want you to have a look at the figure and आप इसको समझने की कोशिश करें कि ये डिस्ट्रीब्यूशन 0 पे क्यों है, इसका जो मीन है वो 0 पे क्यों है, और उसका पॉइंट एस्टिमेट -11.1 क्यों है और +11.1 भी क्यों लिखा गया है। ये हमने अभी तक जो मीन के साथ जब काम किया था तो भी हमने ऐसे ही किया था, अगर आपको याद हो तो। Okay, Nisha has sent a picture for the distribution, which is right. Good job, Nisha. ओके, तो आई गेस कि आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर हो गया है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो नॉर्मल होगा पूरा, ठीक है, सेंटर्ड एट 0, और उसके एक तरफ -11.1 होगा जो कि पॉइंट एस्टिमेट किए हैं, और दूसरी तरफ 11.1 होगा। और वो दूसरी तरफ 11.1 क्यों होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर आप इधर से निकालोगे तो -11.1 और दूसरी तरफ से निकालोगे तो 11.1, राइट, विच बेसिकली मीन्स इज के क्योंकि ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है ना, कि इसने ये नहीं बोला कि ग्रेटर देन वाला बताओ या लेस देन वाला बताओ, इसने बोला नॉट इक्वल टू, तो मुझे ग्रेटर देन वाला भी देखना पड़ेगा और लेस देन वाला भी देखना पड़ेगा। तो 0 से लेस देन -11.1 देख रहे हैं अगर हम, तो 0 से ऊपर 11.1 को भी देखेंगे हम, एंड दैट्स हाउ विल कैलकुलेट आवर कॉन्फिडेंस इंटरवल, राइट। तो ये आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल बन के आएगा आपके फिगर के अंदर, उसके बेसिस पे आप अपना टेस्ट स्टैटिस्टिक कैलकुलेट करोगे, ठीक है। और जिसको कि हम यहाँ पे z बोलते हैं, विच इज इक्वल्स टू पॉइंट एस्टिमेट जो है हमारा -11.1, ठीक है, माइनस उसमें क्या माइनस करेंगे हम लोग, हमारी नल वैल्यू विच इज 0, ठीक है। और इस टोटल टर्म को हम डिवाइड करेंगे किससे, स्टैंडर्ड एरर से।
स्टैंडर्ड एरर क्वेश्चन में कितना गिवन था? 1.114 था, राइट, 0.114। ठीक है, अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो ये काफ़ी बड़ी वैल्यू आनी चाहिए मेरे हिसाब से। यस, काफ़ी बड़ी वैल्यू आ रही है, जिस माइनस ऑफ 97.36। उसी तरीके से आप इसका Z1 निकाला है आपने, तो आप Z2 भी निकालोगे इसका। ठीक है, Z2 में क्या होगा आपके पास? Z2 में आपके पास वैल्यू होगी प्लस में 11.1 माइनस 0 डिवाइडेड 114, और ये वैल्यू 97.36 आ जाएगी। अब अगर मैं Z वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करूं इसके लिए, let me- Z को टेबल, ठीक है, तो आप देखोगे कि नेगेटिव में जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो है 0.34, और उसके लिए जो वैल्यू प्रोबेबिलिटी की आ रही है वो 0.003 है। ठीक है, उसी तरीके से आप पॉजिटिव साइड में जाओगे, ठीक है, जब प्लस वाले में 3.4 में जाओगे और आप उसको देखोगे तो हो गया 0.998 हो गया लगभग। मतलब ये लगभग जब आप इसको 1 में से माइनस करोगे तो ये लगभग 0 के बराबर हो जाएगा, और उधर की वैल्यू ऑलरेडी 0 के काफी क्लोज है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरा जो जी स्कोर निकल के आएगा विच विल बी इक्वल्स टू, सॉरी, पी वैल्यू जो निकल के आएगी मेरी, पी वैल्यू, ठीक है, विच विल बी द सम ऑफ पी वैल्यू फॉर Z1, ठीक है, फॉर Z1 हो गया, ठीक है, और दूसरे कौन सा हो गया? फॉर हो गया मेरा पी वैल्यू फॉर बेस्ड ऑन Z2 की, Z2 के बेसिस पे। तो ये दोनों ही वैल्यू मेरी इतनी 0 के करीब होंगी कि ये इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ऑलमोस्ट, ये डबल वाला मान के चलो, सिमिलरिटी वाला साइन जो है, ठीक है, ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 0 के बराबर आएगा, ऑलमोस्ट इक्वल्स टू। ठीक है, तो ये भी 0 के बराबर है, ये भी 0 के बराबर है। ठीक है, विच मीन्स कि मेरी पी वैल्यू जो है वो ऑलमोस्ट 0 के बराबर ही आएगी। 0 के इक्वल टू कभी नहीं बोल सकते, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में नथिंग कैन बी 100% सर्टेन। क्योंकि अगर आप लोग ध्यान से देखो इसको भी, तो ये आपको यहाँ पे इस फिगर में तो टच करती हुई दिखाई दे रही है एक्स एक्सिस को, पर ये जो लाइन यहाँ पे ऐसे जाती है ना, वो कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करती है। एक्स एक्सिस को टच करने का मतलब क्या हो जाएगा कि परसेंटेज आपका जो है, प्रोबेबिलिटी है वो 0 हो चुकी है। लेकिन परसेंटेज प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 नहीं होती, बहुत छोटी हो जाएगी, 0.000 जो 10,000 टाइम्स 0 के बाद 1 लिख के आएगा, बेशक चलेगा, लेकिन वो कभी भी एग्जैक्टली 0 नहीं होती। वंस इन अ लाइफ टाइम इट इज वेरी मच पॉसिबल, ऐसा मान के चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो पी वैल्यू 0 होने का मतलब ये है, और 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात कर रहे थे, और ये टू एंडेड क्वेश्चन है, राइट। तो यहाँ पे मेरा सिग्निफिकेंस लेवल कितना हो गया? 5%। ठीक है, सिग्निफिकेंस लेवल हो गया मेरा यहाँ पे 5%। तो पी वैल्यू मेरी 5% से छोटी है। ठीक है, सिग्निफिकेंस लेवल अल्फा से कैलकुलेट करते थे, राइट। तो सिग्निफिकेंस लेवल अल्फा इज 5%, और मेरी पी वैल्यू 5% से कम है। ठीक है, तो मेरा पांचवा स्टेप आ गया, डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो फिफ्थ स्टेप पे हमने डिसीजन लिया कि सिंस पी वैल्यू इज स्मॉलर देन सिग्निफिकेंस, देन अल्फा लिख दो, या फिर आप सिग्निफिकेंस लेवल भी बोल सकते हो, सिग्निफिकेंस लेवल। देयरफॉर दिस डेटा प्रोवाइड्स enough evidence for for us to reject the null hypothesis. Hence, hence the जो क्वेश्चन में पूछा गया था, एवरेज बॉडी फैट परसेंटेज, hence there is a difference, hence there there is a difference between the average body fat percentage of men and women, and that's how our question will come to end. This is the common error that many of you had made in the question number 2, the cat and dog question, where you did not make the decision. All you did was calculate the p value and returned it.
Whew. Is it clear to everybody? Let me know actually, because only then we can move forward to it. Is the concept clear to you all people? नो सर। सर जो हाइपोथेसिस वाला था ना HO और HA वाला, उसमें आपने नल वैल्यू मतलब जो थी वो 0 कैसे ली और वो नॉट इक्वल 0 कैसे ली, मुझे ये वाला समझ में नहीं आया। ठीक है, नो प्रॉब्लम, इसको अभी क्लियर करते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, नल हाइपोथेसिस ऊपर जाते हैं वापस से। ठीक है, इनिशियली हमने देखो हमारे क्वेश्चन में गिवन था, जो हमारा क्वेश्चन है हमने सब कुछ वहीं से उठाया है। ठीक है, इसने बोला कि डू दीज डेटा प्रोवाइड कन्विंसिंग एविडेंस दैट मेन एंड वुमेन हैव डिफरेंट एवरेज बॉडी फैट। अब सवाल में मुझसे पूछा गया है कि मेन एंड वुमेन हैव डिफरेंट बॉडी फैट। ठीक है, तो इसका और यहाँ पे हमें मीन की बात की गई है। इसमें देखो क्वेश्चन में भी दिया द BF परसेंटेज फॉर 658 मैन इन द सैंपल वाज 23.9 एवरेज बॉडी फैट परसेंटेज, यानी कि मीन की बात की जा रही है। ठीक है, और सवाल में मुझसे स्टैंडर्ड एरर जो गिवन है, देखो सारा क्लू स्टैंडर्ड एरर ने क्लियरली दे दिया था पहले ही। द स्टैंडर्ड एरर फॉर द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज मेल एंड फीमेल BF परसेंटेज वाज 0.004। ठीक है, तो सवाल में स्टैंडर्ड एरर भी आपको डिफरेंस के लिए दिया हुआ था, तो इससे मुझे आइडिया लग जाना चाहिए था कि जो मेरा हाइपोथेसिस भी होगा और ये जो मेरा क्वेश्चन बेस्ड है उसमें जो एस्टिमेटर है वो क्या है, डिफरेंस बिटवीन द मीन ऑफ मेन एंड वुमेन बॉडी फैट परसेंटेज। ठीक है, ये यहाँ से हमें क्लू मिला। लेकिन लेट्स सपोज हमें यहाँ से क्लू नहीं मिला, तो हमने क्या किया, हमने जो क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि हमारा हाइपोथेसिस हमेशा वहीं से बनता है, राइट। तो यहाँ हमने गौर किया कि वो हमसे एविडेंस किस चीज के लिए मांग रहा है, कि क्या है या नहीं है, वो हमसे पूछ रहा है किस चीज के लिए, फॉर मेन एंड वुमेन हैव डिफरेंट बॉडी फैट परसेंटेज। ठीक है, तो जो चीज मुझे प्रूव करनी होती है या चेक करना होता है जिसकी वैलिडिटी को, उसी को हम लोग ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाते हैं। ये हमने पिछली क्लास में भी बताया था। ठीक है ना। तो हमने क्या किया, हमने अपना नल नल हाइपोथेसिस फॉर्म किया, और सॉरी नल हाइपोथेसिस नहीं, हमने अपना ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस फॉर्म किया कि म्यू ऑफ मेन इज नॉट इक्वल्स टू म्यू ऑफ वुमेन। इतना पार्ट क्लियर है काजल? नहीं सर। ये वाला पार्ट अभी भी क्लियर नहीं है? नहीं सर, सर उसमें तो डिफरेंस बोला है ना, तो फिर हमने नॉट इक्वल। डिफरेंस होने का मतलब ये हो गया कि दोनों बराबर नहीं है ना। डिफरेंस होने का मतलब क्या है कि उसकी वैल्यू हाँ। कुछ होगी, उसकी वैल्यू कुछ होगी, दोनों की वैल्यू बराबर नहीं होगी। डिफरेंस का मतलब यही हुआ ना। हेलो। यस सर। ठीक है, इसलिए मैंने इसको नॉट इक्वल टू लिख दिया, क्योंकि हमारा हाइपोथेसिस फॉर्म करने का तरीका ही कुछ ऐसा है। ठीक है, मैं डिफरेंस के फॉर्म में भी लिखूंगा, लेकिन मैं डायरेक्टली वहां पे जंप नहीं किया हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि चीजें क्लियर क्लियर मूव करें, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन में इतना क्लियरिटी के साथ गिवन नहीं होगा। तो मैंने पहले क्या लिखा, म्यू मैन इज नॉट इक्वल्स टू म्यू ऑफ वुमेन, क्योंकि सवाल मुझे यही पूछ रहा है कि क्या इसके लिए एविडेंस है कि दोनों के बॉडी फैट परसेंटेज, एवरेज बॉडी फैट परसेंटेज जो है वो डिफरेंट है। तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया, दोनों को नॉट इक्वल टू। अब ये वाला पार्ट क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो अब क्योंकि नल हाइपोथेसिस बोल रहा है कि दोनों नॉट इक्वल टू है, तो मेरा सॉरी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस कह रहा है कि दोनों का एवरेज बॉडी फैट जो है मैन और वुमेन का नॉट इक्वल टू है, तो मेरा नल हाइपोथेसिस क्या होगा, इसका उल्टा होगा, विच इज म्यू ऑफ मैन इज इक्वल्स टू म्यू ऑफ वुमेन। यहाँ से मुझे अपना नल हाइपोथेसिस मिल गया। क्लियर है दोनों? यस सर। ठीक है, इसके बाद हमने की पॉइंट एस्टिमेट की बात। ठीक है, तो पॉइंट एस्टिमेट हमें क्वेश्चन में गिवन है। उसने क्या बोला, सॉरी गिवन नहीं है, एक तरीके से उसका आइडिया दिया हुआ है पॉइंट एस्टिमेट के लिए, क्योंकि हम जब पॉइंट एस्टिमेट पर काम करेंगे और कॉन्फिडेंस इंटरवल वगैरह कैलकुलेट करेंगे, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, स्टैंडर्ड एरर का। ठीक है, और स्टैंडर्ड एरर जो इस क्वेश्चन में गिवन है वो किसका दिया हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज मेल एंड फीमेल बॉडी परसेंटेज। तो अगर स्टैंडर्ड एरर डिफरेंस के लिए है, तो मेरा जो पॉइंट एस्टिमेट होना चाहिए वो भी डिफरेंस का ही होना चाहिए, है यस ना। सर। तभी चीजें काम करेंगी हमारे लिए। तो हमने क्या किया, हमको क्वेश्चन में गिवन है द एवरेज बॉडी फैट परसेंटेज फॉर मेन। ठीक है, जो कि गिवन है 23.9, और वही हमें वुमेन के लिए भी गिवन है, विच इज 35.0। ठीक है, तो हमने उन्हें सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, हमने इन्हें क्या किया, पॉइंट्स एस्टिमेट निकालने के लिए हमने उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया।
तो एक्स बार मैन माइनस एक्स बार वुमेन, वो आ गया हमारे पास 23.9 माइनस 35.0 विच इज 11.1 माइनस 11.1। अब क्योंकि मेरा पॉइंट एस्टिमेट जो है वो डिफरेंस वाला है, डिफरेंस ऑफ मीन है, तो मेरा जो हाइपोथेसिस फॉर्म हुआ है वो भी डिफरेंस ऑफ मीन वाला ही होना चाहिए, है ना। क्वेश्चन में दो अलग अलग तरीके का फॉर्मेट यूज नहीं कर सकते। तो मैंने क्या किया कि मैन वुमेन जो म्यू ऑफ मैन इज इक्वल्स टू म्यू ऑफ वुमेन है। अगर दोनों बराबर है, मेरा नल हाइपोथेसिस कह रहा है अगर दोनों बराबर है तो दोनों का डिफरेंस जीरो होना चाहिए। हाँ। तो मैंने उसको इस फॉर्मेट में लिख दिया, रीराइट कर दिया अपने नल हाइपोथेसिस को कि म्यू ऑफ मैन माइनस म्यू ऑफ वुमेन इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अब ये मेरा बाकी क्वेश्चन के फॉर्मेट की तरह लाइन हो गया। इसी तरीके से मैंने ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को लिख दिया। उसने बोला कि म्यू ऑफ मैन इज नॉट इक्वल टू म्यू ऑफ मैन, लिखा हुआ था हम लोगों ने, तो मैंने इसको क्या कर दिया, म्यू ऑफ मैन माइनस म्यू ऑफ मैन इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर दोनों नॉट इक्वल टू, अगर आपस में बराबर नहीं है तो उनका डिफरेंस भी जीरो नहीं होगा, है ना, कुछ तो वैल्यू आएगी। तो इसीलिए मैंने क्या लिखा, म्यू ऑफ मैन माइनस म्यू ऑफ वुमेन इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब क्लियर है? यस सर। बाकी पार्ट तो क्लियर हुआ क्योंकि वो तो पुराने तरीके से ही किया गया है, राइट। सर। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चंस आते हैं डिफरेंस ऑफ मीन वगैरह, आपको क्वेश्चन में ही हमेशा क्लू दिया होगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में प्रोपोर्शन दिया होता 33%, हमें वहीं से आइडिया लग गया था कि ये प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में उसने स्टैंडर्ड एरर दिया हुआ है, और किसके लिए दिया हुआ है, डिफरेंस ऑफ मीन के लिए दिया हुआ है। तो हमारा काम और भी ज्यादा यहाँ से क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन में ही सारे क्लू गिवन होते हैं कि ये क्वेश्चन किस तरीके का है और किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं डिसीजन एरर्स की। ठीक है, कि किस तरीके से के जो एरर्स होते हैं वो हम लोग डिसीजन लेते वक्त कर सकते हैं, और किस तरीके से उसको मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करें, कौन से हमको ज़्यादा फायदा है या नुकसान है। ठीक है, उसके ऊपर बात करते हैं, डिसीजन एरर्स। ठीक है, जैसे कि रियल लाइफ में होता है कि हम अच्छे से अच्छे डिसीजन में भी गलतियां कर सकते हैं। कोर्ट में भी कई बार ऐसा हो जाता है कि बेगुनाहों को सजा मिल गई, या फिर जो गुनहगार है वो छूट के निकल गया। दिस हैपन्स क्योंकि कोई भी सिस्टम प्रूफ नहीं है। तो स्टैटिस्टिक्स के साथ भी ऐसा ही है। स्टैटिस्टिक्स में भी क्या होता है, डिसीजन लेते हुए कई बार हमसे एरर हो जाता है। ठीक है, तो हाइपोथेसिस टेस्ट में भी हमसे एरर होता है। ठीक है, हालांकि रियल लाइफ में और स्टैटिस्टिक्स में जो डिसीजन एरर के बीच में डिफरेंस है, और डिफरेंस ये है कि स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो डिसीजन एरर होते हैं ना, उनको कैलकुलेट करने के लिए, उनको क्वांटिफाई करने के लिए हमारे पास नेसेसरी टूल्स अवेलेबल हैं, और जिससे कि हम पता लगा सकते हैं कि कितना एरर किया हमने, और हमारे लिए वो सूटेबल है या नहीं। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स में हम गलतियां जो करते हैं उसको भी पता लगा सकते हैं कि हम कितने लेवल की गलतियां कर सकते हैं, और अदर हम उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं काफी हद तक। ठीक है, तो दो तरीके के एरर होते हैं। सबसे पहला होता है टू टाइप्स ऑफ एरर। ठीक है, ऑफ एरर्स। पहला होता है टाइप 1 एरर। ठीक है, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा क्या होता है इसका मीनिंग। और दूसरा होता है हमारे पास टाइप 2 एरर। ठीक है, ये दो तरीके के एरर हैं और दोनों के अपने अपने मीनिंग होते हैं। पहले समझते हैं कि टाइप 1 एरर क्या होता है और टाइप 2 एरर क्या होता है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आई एम गोइंग टू मेक काइंड ऑफ लाइक अ टेबल जैसी कोई चीज़ बना लेते हैं। और टेबल जैसी चीज़ बनाने के लिए हम विन वर्ल्ड ओपन कर लेते हैं। Okay, let's insert a table here, and the size of table should be 3 by 3, kind of like that. Okay, so we have ये हमारा, इसमें एक और ऐड कर लेते हैं, अगर एक और रो ऐड कर लेते हैं। छोड़ो, टेबल को हम नीचे शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, और ये जो हमारा टॉप पे लिखा हुआ होगा ना, ये हमारे डिसीजंस होंगे। ठीक है, DECISIONS। ठीक है, और मैं इसको थोड़ा सेंटर लाइन कर देता हूँ, और सेंटर लाइन टेक्स्ट साइज 16 को बोल्ड कर दिया इसको। ठीक है, और टेबल को थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर दिया हमने क्योंकि हम यहाँ पे भी कुछ लिखना चाहेंगे।
कि ये हमारी ट्रू वैल्यूज होंगी इस साइड में। ठीक है, एक्चुअली टेबल कुछ और ले लेते हैं, टेबल का साइज बड़ा कर लेते हैं 4x4। ओके ठीक है, 4x4 कर लिया हमने। और जो फर्स्ट कॉलम है, ठीक है, ये हमारा डिसीजन को दिखा रहा है, ये भी डिसीजन है, ये भी डिसीजन है जो हमने लिया। ठीक है, और यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो हमारा ट्रुथ वैल्यू को बता रहा है कि क्या उसकी ट्रू वैल्यू थी और हमने क्या डिसीजन लिया। ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं कि एच नॉट इज ट्रू, राइट। और यहाँ पे लिया हमने कि एच नॉट इज ट्रू। ओके वेट, इसका साइज भी बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, एच नॉट इज ट्रू, और यहाँ पे मान लेते हैं कि एच ए ट्रू था, ऑल्टरनेटिव वाला ट्रू था। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग कि वी फेल्ड टू रिजेक्ट एच नॉट, और यहाँ पे हमने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया एच नॉट को। ठीक है, यही हमारी कंडीशन बन सकती है कि हमारा जो नल हाइपोथेसिस था वो ट्रू था, लेकिन हमने उसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, उसके बावजूद रिजेक्ट कर दिया, तो ये हमारे लिए एक एरर होगा। और अगर नल हाइपोथेसिस हमारी ट्रू है और हम इसको फेल टू रिजेक्ट, यानी कि हम इसको रिजेक्ट नहीं किया, तो हमारी तरफ से कोई भी गलती नहीं है, राइट। अगर नल हाइपोथेसिस ट्रू है हमारी, हालांकि याद रखना कभी भी कि नल हाइपोथेसिस या अल्टरनेट हाइपोथेसिस ये ट्रू है या नहीं, ये हमें कभी, ऑलमोस्ट कभी भी मालूम नहीं होता है, लेकिन ये एरर कैलकुलेट करने के तरीके हैं। ठीक है, तो अगर लेट्स सपोज कि मेरा नल हाइपोथेसिस ट्रू है, ठीक है, तो मैं इसको रिजेक्ट नहीं करूंगा। अगर मैं इसको रिजेक्ट नहीं करता हूं तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं होगी, राइट। अगर मेरा नल हाइपोथेसिस ट्रू है तो मैं उसको रिजेक्ट नहीं किया, मैंने फेल टू रिजेक्ट एच नॉट, दिस मीन्स नो एरर। उसी तरीके से अगर मेरा ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस ट्रू है तो फिर मुझे नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना होगा इन फेवर ऑफ ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो यानी कि व्हेन एच ए इज ट्रू, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस इज ट्रू, और हमने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया तो भी हमने कोई एरर नहीं किया। ठीक है, अब बचती हैं दो कंडीशंस, और वो दोनों हमारे एरर्स को सिग्निफाई करते हैं। ये टाइप 1 एरर क्या होता है कि एच नॉट मेरा ट्रू है, ठीक है, यानी कि मेरा नल हाइपोथेसिस ट्रू है और मुझे नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैंने क्या किया, नल हाइपोथेसिस ट्रू होने के बाद भी उसको यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया। नल हाइपोथेसिस ट्रू है मेरी और उसके बावजूद भी मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो उस केस में ये मेरा बन गया टाइप 1 एरर। ठीक है, इसको बोलते हैं लोग टाइप 1 एरर के, नल हाइपोथेसिस ट्रू होने के बाद भी हमने रिजेक्ट कर दिया तो वो टाइप 1 एरर है। उसी तरीके से जब हमारी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस ट्रू होती है और उसके बावजूद भी हम ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस के फेवर में रिजेक्ट नहीं करते एच नॉट को, नल हाइपोथेसिस को, तो वो हमारे लिए टाइप 2 एरर बन जाता है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइप 2 एरर एंड टाइप 1 एरर कि अगर मेरा नल हाइपोथेसिस ट्रू है और उसके बावजूद भी उसको रिजेक्ट कर दिया गया तो वो टाइप 1 एरर है। अगर मेरा ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस ट्रू है लेकिन इसके बाद भी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं किया गया तो इसका मतलब है कि टाइप 2 एरर कर दिया मैंने। तो ये दो तरह के एरर हैं, ये दो तरह की गलतियां हैं जो कि हम डिसीजन लेते वक्त कर सकते हैं, क्योंकि चार ही कंडीशन बनती है हमारे पास, चार में से दो कंडीशन ऐसी हैं जो कि नॉन एरेनियस हैं और दो कंडीशन ऐसी हैं जो कि हमारे एरेनियस होती हैं। ठीक है, तो एक बात अगर आप यहाँ पे गौर कर पा रहे होगे, अगर ये बात सोच पाओगे तो एक चीज क्लियर हो जाएगी आपको कि टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो बात यहाँ पे नोट करने वाली है कि टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अगर मेरा टाइप 1 एरर मेरे स्टैटिस्टिक्स के अंदर बढ़ रहा है,
ठीक है, नंबर ऑफ टाइप 1 एरर मेरा बढ़ रहा है तो मेरा नंबर ऑफ टाइप 2 एरर कम हो जाएगा, या फिर अगर मेरा नंबर ऑफ टाइप 2 एरर बढ़ रहा है तो मेरा नंबर ऑफ टाइप 1 एरर जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि दोनों तरह के एरर मेरे सिस्टम के अंदर हमेशा होते हैं। ठीक है, पर हमें मैनेज करना पड़ता है कि किस एरर से हमें कम दिक्कत है, किस एरर से हमें ज्यादा दिक्कत है। फॉर एग्जाम्पल अगर लेट्स सपोज मैं स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ और एक मैं जज हूँ और उसके बेसिस पे अपना डिसीजन ले रहा हूँ, तो मेरे लिए टाइप 1 एरर कमिट करना ज्यादा दिक्कत वाली चीज होगी या टाइप 2 एरर करने वाली ज्यादा दिक्कत होगी। और इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं कि हम मान लेते हैं कि जो एच नॉट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, जो एच नॉट हाइपोथेसिस है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे लिख लेते हैं कि एच नॉट जो है हाइपोथेसिस वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसको मान लेते हैं डिफेंडेंट इज इनोसेंट। ठीक है, लेट्स सपोज के मैं जज हूं तो मेरे हिसाब से एच नॉट क्या होना चाहिए कि डिफेंडेंट इज इनोसेंट, और एच ऑल्टरनेट क्या होना चाहिए कि डिफेंडेंट इज नॉट इनोसेंट, इज गिल्टी, राइट। तो ये दो तरह की हाइपोथेसिस हो सकती हैं। और मैंने एच नॉट को डिफेंडेंट इज इनोसेंट क्यों लिखा, क्योंकि एटलीस्ट इंडिया में तो ऐसा है कि अ पर्सन इज नॉट गिल्टी अंटिल प्रूवन। ठीक है, तो जब तक हमारे पास एविडेंस नहीं होगा तब तक उसको हम लोग इनोसेंट ही मानेंगे, उसको गिल्टी नहीं मान सकते। इसीलिए मैंने एच नॉट को ही लिया है यहाँ पे डिफेंडेंट इज इनोसेंट की तरह। ठीक है, तो अगर मेरे पास ये दो हाइपोथेसिस हैं तो अगर मेरे पास यही मेरा इन क्वेश्चन टास्क है, ठीक है, कि मैं जज हूँ और मुझे इनोसेंट या नॉट इनोसेंट, गिल्टी या नॉट गिल्टी प्रूव करना है, तो मेरे लिए सबसे बड़ी दिक्कत वाली चीज क्या होगी, जो कि एक फिलोसफी के ऊपर बेस्ड है, जो कि इंडिया में भी काफी यूज होता है कि 100 गुनहगार छूट जाए पर एक इनोसेंट को कभी सजा नहीं होनी चाहिए। विच मीन्स के अगर डिफेंडेंट इनोसेंट है तो उसको सजा नहीं होनी चाहिए। विच मीन्स के इफ एच नॉट इज ट्रू तो हमें उसको रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर मेरा एच नॉट ट्रू है तो हमें उसे रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, यानी कि डिफेंडेंट इनोसेंट है तो डिफेंडेंट को इनोसेंट ही हमारा रिजल्ट भी आना चाहिए। यानी कि अगर मैं जज हूं तो मेरी कोशिश ये होगी कि भाई टाइप 1 एरर को घटाओ, कम से कम करो। टाइप 2 एरर बढ़ता है चलेगा, लेकिन टाइप 1 एरर जितना कम होगा उतना बेटर होगा मेरे सिस्टम के लिए। हालांकि मेरा अभी भी मानना है, मेरा हमेशा से मान रहा है टाइप 1 और टाइप 2 एरर के बारे में कि ये एक सब्जेक्टिव इशू है, और ये टोटली डिपेंड करता है कि आप कौन सा टास्क कर रहे हो, आपकी सोच क्या है, आपका अप्रोच क्या है। हो सकता है कि दूसरा जज हो वो बोले कि गुनहगारों को तो अंदर डालो, एक आध दो लोग इनोसेंट चले गए तो भी चलेगा, पर गुनहगार बाहर रह गए तो और भी ज्यादा गुनाह करेंगे। तो हो सकता है दूसरा जज ऐसे सोचे। तो इट इज ऑलवेज सब्जेक्टिव to the person who is implementing these things or who is applying statistics or doing the hypothesis test, right? तो ये इसके ऊपर डिपेंड करता है मेनली। तो टाइप 1 और टाइप 2 एरर इतना क्लियर हो गया। आई होप कि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं, और हम डिसाइड करते हैं बेसिकली कि किस तरह का एरर हम अपने सिस्टम में रखना चाहते हैं, किसको कम करना चाहते हैं और किसको ज़्यादा करना चाहते हैं। ठीक है, तो इस चूज करने की जो ऑप्शन है टाइप 1 और टाइप 2 एरर को बढ़ाने कम करने का, वो हमारे पास है। ठीक है, ओके। अब जैसे कि मैंने अभी बोला कि कौन सा एरर जो है वो ज़्यादा मुश्किल है बनाने वाला, तो ये जज वाला केस हमने सॉल्व किया है। पर इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो हमें थोड़ी सी जाननी ज़रूरी है कि टाइप 1 एरर रेट क्या है और टाइप 2 का एरर रेट क्या है। ठीक है, उसके बेसिस पे हम अपना सिग्निफिकेंस और कॉन्फिडेंस लेवल कैसे डिपेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो टाइप 1 एरर रेट को समझने की कोशिश करते हैं अभी। ठीक है, टाइप 1 एरर रेट। ठीक है, टाइप 1 एरर रेट का मतलब ये है कि फिर से इसको यहाँ लिख लेते हैं एक बार कि वी रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट वाज एक्चुअली ट्रू। ठीक है, एक्चुअली ट्रू होने का मतलब क्या है कि मेरे पास जो पी वैल्यू आएगी, इसको मैथमेटिकली कैसे समझूंगा मैं कि पी वैल्यू जो थी मेरी वो ग्रेटर देन 0.5 थी। लेट्स सपोज 5% सिग्निफिकेंस लेवल की बात कर रहे हैं, तो पी वैल्यू जो थी मेरी वो 0.05 से बड़ी थी।
और इसके बाद भी मैंने क्या कर दिया, एच नॉट को रिजेक्ट कर दिया। दिस इज व्हाट टाइप 1 एरर इज, राइट। मैथमेटिकली इसका मतलब यही हुआ कि एच नॉट को तो ट्रू है मेरा, लेकिन इसके बाद भी उसको रिजेक्ट कर दिया। और इसका मतलब क्या हुआ, अब इसको समझो। जब मैं बोलता हूं ना कि मुझे 5% सिग्निफिकेंस लेवल चाहिए, ठीक है, 5% सिग्निफिकेंस लेवल का मतलब ये है कि आई एम रेडी टू एक्सेप्ट 5% टाइम्स ऑफ एरर, कि मैं टाइप 1 एरर जो है उसको मैं 100 बार अगर मैं इस टेस्ट को कर रहा हूं तो 100 में से 5 बार ये गलती मानने के लिए मैं तैयार हूं कि 500 में से 5 गलतियां मेरे लिए चलेंगी। 5% सिग्निफिकेंस लेवल का मतलब ये हुआ यहाँ पर। तो सिग्निफिकेंस लेवल का जो अभी तक हमने मीनिंग समझे थे उससे ज्यादा ब्रॉडर मीनिंग है। सिग्निफिकेंस लेवल हमें ये बताता है कि कितना परसेंट एरर हम अपने सिस्टम के अंदर अलाउ कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम 5% सिग्निफिकेंस लेवल अलाउ कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि 100 में से 5 बार हम, अगर हमारा सिस्टम गलतियां करता है तो हमें चलेगा, हमारे लिए वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। दिस इज व्हाट 5% सिग्निफिकेंस लेवल मीन्स। तो इसीलिए डिपेंडिंग अपॉन द टास्क कि हम कैसा काम कर रहे हैं कैसा नहीं, हम सिग्निफिकेंस लेवल को लो रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये हाई होने का मतलब है कि टाइप 1 एरर भी उसी हिसाब से बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को एक तरीके से और भी समझने की कोशिश करते हैं कि कि इसको कैसे समझें। सिग्निफिकेंस लेवल को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। ALPH अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अल्फा की जो वैल्यू है उसके ऊपर डिपेंड करेगा टाइप 1 एरर, ठीक है। तो टाइप 1 एरर डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ अल्फा, ठीक है। तो अब सवाल मेरे लिए ये बनता है कि हाउ डू वी चूज अल्फा, ठीक है। अल्फा की वैल्यू कैसे चूज करें, बड़ा कब लें छोटा कब लें, और ये डिसाइड कैसे होगा, ठीक है। तो फिर से मैं वही बोलूंगा कि ये एक बैलेंसिंग एक्ट है और ये एक सब्जेक्टिव सवाल है, ठीक है। बैलेंसिंग एक्ट है और ये सब्जेक्टिव सवाल है। अगर, जैसे कि मैंने कोर्ट वाले डिसीजन में आपको बताया कि अगर मुझे टाइप 1 एरर मेरे सिस्टम में बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, जैसे कि अगर मैं एक जज हूं तो मुझे चाहिए होगा कि जितना कम सिग्निफिकेंस लेवल हो उतना बेटर हो, कि कम से कम लोगों को जो कि गलती जिन्होंने नहीं की है उसे सजा मिले, जितना कम हो उतना बेटर है मेरे सिस्टम के अंदर। जीरो तो एब्सोल्युटली हो ही नहीं सकता, क्योंकि सर्टेनिटी कभी भी 100% किसी चीज की नहीं है। बट हम ये कोशिश करेंगे कि अगर मैं कोल्ड वाला पर्सन हूं तो ये सिग्निफिकेंस लेवल मेरा 1% वाला ये चलेगा। लेकिन लेकिन अगर मैं एक कंपनी चला रहा हूँ जहाँ पे कोई किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, लेट्स से कि मैं आईफोन का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ और ये मेरा प्लांट है जो रन कर रहा है गुड़गांव में, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है कि टाइप 2 एरर जो होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा डेंजरस होता है एज कम्पेयर टू टाइप 1। अगर टाइप 2 आएगा तो मैं बताऊंगा। तो मुझे चलेगा कि टाइप 1 एरर 5% भी होगा तो भी चलेगा, जो कि होता है एक्चुअली में 5%, 3%, 2% ऐसा होता है। और इसका मतलब ये कि 100 फोन अगर बन रहे हैं तो 2-3 में भी थोड़ी थोड़ी अगर दिक्कत रह जाती है तो भी चलेगा, क्योंकि मेरा प्रॉफिट मार्जिन इतना है कि वो 2-3 जो गड़बड़ हो रहा है उसको कवर कर सकता है, ठीक है। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि अल्फा की वैल्यू हम क्या टास्क करें, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि अल्फा की वैल्यू कितनी लेनी है। अगर टाइप 1 एरर को बढ़ाना है तो अल्फा को बढ़ा दो, टाइप 1 को घटाना है तो अल्फा को घटा दो। टाइप 1 को बढ़ाने का मतलब है कि टाइप 2 को घटा भी रहे हो, याद रखना, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी बोला कि टाइप 2 एरर इज रिलेटिवली मोर डेंजरस और एटलीस्ट मोर कॉस्टली। तो टाइप 2 अगर हमारा ज़्यादा डेंजरस है तो हम सिग्निफिकेंस लेवल हमेशा हाई रखेंगे, ठीक है। नो, अगर टाइप 2 एरर मेरा कम डेंजरस है तो हम सिग्निफिकेंस लेवल हाई रखेंगे। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू मीन हियर, ठीक है। अभी टाइप 2 एरर को समझने की कोशिश करते हैं कि टाइप 2 एरर क्या होता है, ठीक है। याद रखना दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। सर आपने क्या बोला, अगर टाइप 2 टाइप कम डेंजरस है तो अल्फा ज्यादा रखेंगे? हाँ, क्योंकि अगर कम रखेंगे, करेक्शन कम रखेंगे, यप। अगर मेरा टाइप 2 एरर मुझे बढ़ाना है तो मुझे टाइप 1 एरर को घटाना होगा, और टाइप 1 एरर को घटाना है तो मुझे अल्फा की वैल्यू भी कम रखनी है। आई मेड अ मिस्टेक देयर, ठीक है, गुड।
ओके, अब टाइप 2 एरर की बात करते हैं। टाइप 2 एरर का मतलब ये हुआ कि अगर ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस ट्रू है, ठीक, इफ alternate hypothesis is true and yet the null hypothesis which is h naught is not rejected। ठीक है, मैथमेटिकली इसका मीनिंग क्या हुआ कि p वैल्यू जो आपके पास है इट इज लेसर देन 5%, ठीक है, और इसके बाद भी रिजेक्शन नहीं हुआ। तो p वैल्यू आपकी 5% से कम था, उसके बाद भी रिजेक्शन नहीं हुआ, तो आप टाइप 2 एरर कर जाते हैं। ठीक है, और ऐसा केसेस बहुत बार होता है जो कि टाइप 2 एरर हो जाता है हमसे। जैसे कि लेट्स सपोज कि हम कोई काम कर रहे हैं, लेट्स सपोज मैं अपना मैन्युफैक्चरिंग वाले प्रोसेस पे ही आया, तो 5% मैंने अलाउ कर रखा है कॉन्फिडेंस इंटरवल, ठीक है, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, 5% से डिफरेंस लेवल की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो अगर पी वैल्यू 5.5% है या फिर या फिर या फिर 6% भी है, ठीक है, जो कि काफी क्लोज है, ठीक है, यानी कि जब भी इफ द ट्रू पॉपुलेशन इज वेरी क्लोज टू द नल पॉपुलेशन, क्योंकि जो हम लोग जी स्कोर कैलकुलेट करते हैं वो कैसे करते हैं कि हमारे पास जो भी पॉइंट एस्टिमेट है, ठीक है, उसमें से हम लोग नल वैल्यू को माइनस करते हैं। ठीक है, और अगर मेरा पॉइंट एस्टिमेट नल वैल्यू के काफी पास में है तो मेरा जी स्कोर की जो वैल्यू होगी वो छोटी हो जाएगी। ठीक है, जहाँ पे जो मेरा नंबर कैलकुलेट होके आएगा वो छोटा हो जाएगा, और जब भी मेरा नल एस्टिमेट और पॉइंट एस्टिमेट दोनों बहुत करीब होंगे तब तब टाइप 2 एरर जो हम करते हैं उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा होगी। ठीक है, अगर ट्रू पॉपुलेशन एवरेज इज काफ़ी डिफरेंट फ्रॉम नल वैल्यू, तो उसका जो डिफरेंस होगा वो काफ़ी क्लियर नज़र आएगा। ठीक है, और तब हमारा जो एरर करने की प्रोबेबिलिटी होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। याद रखना कि अल्फा का इस्तेमाल किया था हम लोगों ने टाइप 1 एरर को सिग्निफाई करने के लिए। ठीक है, कि अगर अगर मुझे ये बताना है कि मैं कितना परसेंट टाइप 1 एरर कर रहा हूँ, टाइप 1 एरर कितना परसेंट कर रहा हूँ, तो मैं सीधा उसको अल्फा के बराबर रख सकता हूँ। टाइप 1% इज इक्वल टू अल्फा, राइट। लेकिन अगर मुझे टाइप 2 का करना है तो उसके लिए मेरे पास दूसरा पैरामीटर होता है जिसको बोलते हैं बीटा। अल्फा और बीटा के बीच में कुछ प्रॉपर रिलेशन होता है, इसका भी कुछ प्रॉपर फॉर्मूला है, बट आई डोंट थिंक कि हम उसको इस क्लास में या इस कोर्स में कवर करेंगे, बट देयर इज सम काइंड ऑफ रिलेशन बिटवीन देम। ये आप लोग मैथमेटिक्स मतलब पाइथन के अंदर या फिर आर के अंदर या फिर लैंग्वेज के अंदर आप लोग डायरेक्टली इसको कैलकुलेट कर सकते हो, उसके लिए फॉर्मूला गिवन है। आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द फॉर्मूला हियर, बट द पॉइंट इज के यहाँ पे हमारे पास बीटा नाम का एक पैरामीटर है जो कि क्लियरली बताता है कि टाइप 2% एरर हम लोग कितना कर रहे हैं अपने सिस्टम के अंदर। और ये जो बीटा है विच इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग द टाइप 2 एरर, ये डिपेंड करता है इफेक्ट साइज के ऊपर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो मैंने अब बोला है। ठीक है, बीटा डिपेंड्स ऑन द इफेक्ट साइज, ठीक है, ऑफ द डेटा। अब इफेक्ट साइज क्या चीज है? इफेक्ट साइज होता है, इफेक्ट साइज इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा साइन से। ठीक है, और डेल्टा इज बेसिकली इक्वल्स टू जो हम अभी ऊपर ये जो पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा हुआ था ना, यहाँ पे हम डिवाइड बाय ऐसे ही लिखने वाले थे जो कि हम भूल गए। तो ये जो हिस्सा है पॉइंट एस्टिमेट माइनस नल वैल्यू, इसको बोलते हैं हम लोग डेल्टा। ये होता है हमारा इफेक्ट साइज। ठीक है, तो जब भी इफेक्ट साइज हमारा ज्यादा होगा तो हमारा डिफरेंस काफी क्लियर हमें नजर आएगा, लेकिन अगर डिफरेंस ज्यादा का नहीं है तो हमारे लिए दिक्कत काफी नजर आती है, और वो हम डेल्टा से यहाँ पे क्लियरली देख पाते हैं। तो इसीलिए हमारे पास एक टॉपिक है जो कि आज ही आएगा और थोड़ी देर में आएगा कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस एंड स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस, जो कि हमारा इफेक्ट साइज के ऊपर डिपेंड करता है। इस चीज को भी हम समझेंगे एक तरीके से कि इसका इस्तेमाल कैसे होता है। इन शॉर्ट दो तरह के एरर होते हैं, टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर में क्या होता है कि नल हाइपोथेसिस आपका ट्रू होता है लेकिन फिर भी रिजेक्ट कर देते हैं। टाइप 2 एरर क्या होता है कि आपका ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस ट्रू होता है लेकिन उसके बाद भी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करते हैं उसके फेवर के, ऑल्टरनेट के फेवर में। तो ये दो तरह के एरर होते हैं और ये दोनों एरर अपने आप एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर एक ग्रो करेगा तो दूसरा कम होगा, या फिर दूसरा ग्रो करेगा तो पहला कम होगा।
ठीक है, अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस और कॉन्फिडेंस लेवल की। अभी मैंने बोला कि 95% सिग्निफिकेंस 95% कॉन्फिडेंस लेवल है, तो 5% सिग्निफिकेंस लेवल है। क्या ये बाय चांस हुआ कि दोनों का सम 100 है, या फिर नॉर्मली ऐसा ही होना चाहिए? ये आप लोगों के लिए सवाल है और आप में से कोई भी जवाब दे सकता है इसका। क्या ये बाई चांस हुआ, या फिर दोनों का सम इक्वल्स टू 100 जो है ये मैथमेटिकली होना चाहिए? सम बड़ी आंसर, कोई तो जवाब दो। इतनी शांति क्यों है भाई? अगर 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है तो 5% सिग्निफिकेंस लेवल क्यों होता है? ये दोनों का सम 100 ही होना चाहिए, क्या इसीलिए ऐसा होता है, या फिर कोई और वजह है इसके पीछे? क्या कोई और वजह हो सकती है, या फिर यही वजह है कि सम हमेशा 100 ही होना चाहिए? क्या लगता है आप लोगों को? क्या ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, या फिर एक दूसरे को कंप्लीट करके 100% बनाने की कोशिश कर रहे हैं? सिग्निफिकेंस लेवल एंड कॉन्फिडेंस लेवल 100% बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ओके ठीक है। विच इज राइट कि सिग्निफिकेंस लेवल और कॉन्फिडेंस लेवल इन दोनों का सम आप करोगे अगर, तो हमेशा आना चाहिए। तो ब्रॉडली स्पीकिंग सॉरी, ब्रॉडली स्पीकिंग कॉन्फिडेंस लेवल एंड सिग्निफिकेंस लेवल दे आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर, ब्रॉडली स्पीकिंग, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ही ऐसा होगा। दो तरह के केसेस होते हैं जिनके ऊपर डिपेंड करता है कि दोनों का सम 100 होगा या नहीं होगा, ठीक है। और वो दो तरह के केसेस क्या है? पहला केस है कि टेस्ट किस तरीके का है। ऊपर आई मीन दो तरह के केसेस है और दोनों डिपेंड करता है कि टेस्ट किस तरीके का है। पहला हो गया टू साइडेड टेस्ट, या फिर टू टेल्ड टेस्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर टू साइडेड टेस्ट है हमारे पास, ठीक है, टू साइडेड टेस्ट का मतलब क्या हो गया कि इफ आई लुक एट दिस पार्ट, ओके, तो टू साइडेड टेस्ट का मतलब हो गया कि अगर लेट्स सपोज ये यहाँ पे और एक और लाइन में यहाँ पे ड्रॉ कर दूं, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल ले लेते हैं, नॉर्मल ग्राफ, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, ओके, तो वी हैव अ फिगर, ठीक है। तो ये 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे ये स्पेस खाली है, यहाँ पे ये स्पेस खाली है, ठीक है। तो जब हम टेल 95% अगर हम कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात कर रहे हैं, तो हमारा दोनों तरफ 0.25 और 0.25 यानी 2.5% इधर और 2.5% इधर दोनों तरफ बच जाता है। तो जो एरिया हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं वो इन दोनों के बीच का होता है, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस लेवल 5% जो हम बोलते हैं, तो वो दो हिस्सों में डिवाइड होता है, 2.5% और 2.5%, है ना। क्योंकि यही तो हमारा एरर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट एरर वाला, ये वाला पार्ट हमारा एरर वाला, बाकी सारी जो बीच की वैल्यू है वो तो हमारे कॉन्फिडेंस इंटरवल की है, वो तो हमारे लिए सही है, राइट। तो अगर मैं सिग्निफिकेंस लेवल की बात करता हूँ तो 5% यहाँ पे सेंस करता है, क्योंकि 2.5% यहाँ पे हो गया, 2.5% यहाँ पे हो गया, 95% यहाँ पे हो गया, क्योंकि टू एंडेड टेस्ट है, यानी कि इधर का एरर भी काउंट होगा और इधर का एरर भी काउंट होगा। याद रखना, सिग्निफिकेंस लेवल हमेशा दो हिस्सों में बराबर बंटता है, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल अगर 95% है, या फिर अगर मेरा सिग्निफिकेंस लेवल 5% की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, 5% सिग्निफिकेंस लेवल बोला, और वो टू साइडेड टेस्ट है, तो 5% को हम दो हिस्से में डिवाइड करते हैं, क्योंकि टू साइडेड टेस्ट है। तो 2.5% इस तरफ हो गया और दूसरा 2.5% इस तरफ हो गया था, 2.5% ऑन दिस साइड एंड 2.5% ऑन दिस साइड, एंड 95% इज द कॉन्फिडेंस इंटरवल इन बिटवीन, और उसका सम कितना हो गया? 100 हो गया। तो इफ इट इज अ टू साइडेड टेस्ट, ठीक है, so if it is a two sided test the sum will be 100, यानी कि वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होंगे। लेकिन अगर टू साइडेड टेस्ट नहीं है, वन साइडेड टेस्ट है, विच बेसिकली मीन्स के मेरे पास जो पहले वाले क्वेश्चन जो है हमारे पास, उसमें कंडीशन क्या होती है ऑल्टरनेट के लिए कि जैसे अभी हमने देखा था कि लेट्स सपोज न्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0, ऐसा वाला कंडीशन जो कि टू साइडेड टेस्ट था। लेकिन अगर मेरे पास कंडीशन हो के एच ए में लिखा हो कि म्यू इज ग्रेटर देन 0, लेट्स सपोज ऐसा कंडीशन है, बस ग्रेटर देन 0 की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे लेस देन वाला हिस्सा आएगा ही नहीं।
यानी कि अगर मैं 5% सिग्निफिकेंस देखना चाहता हूँ तो वो सिर्फ ग्रेटर वाले पार्ट नहीं देखना चाहता हूँ, यानी पूरा 5% जो है मेरा इस बार डिवाइड नहीं होगा, 5% पूरा पूरा हिस्सा ग्रेटर देन साइड के लिए ही देखना चाहता हूँ मैं। तो अब क्या होगा, अब जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस ये होगा कि यहाँ पे पूरा 5% यहीं पे दिखाएगा, और पूरा 5% अगर यहाँ पे दिखा रहा है तो इधर भी पूरा 5% ही दिखाएगा, यानी 5% सिग्निफिकेंस लेवल यहाँ पे कवर हुआ, 5% सिग्निफिकेंस लेवल यहाँ पे कवर हुआ, तो मेरा कॉन्फिडेंस इंटरवल कितना बचा, 90। तो 95 की बजाय मेरा 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल कवर होगा फॉर 5% सिग्निफिकेंस लेवल अगर मेरा वन साइडेड टेस्ट हो रहा है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि दूसरे वाले एंड का जो 5% है वो हम काउंट ही नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो भाई ग्रेटर देन वाले के लिए टेस्ट कर रहे हैं, या फिर ठीक है। सेम इज द केस फॉर लोअर एंड, कि अगर मैं म्यू इज लेस देन इक्वल टू 0 के लिए अगर काम कर रहा हूँ तो वहां पे इस वाले एंड का जो 5% है, अगर मैं 5% सिग्निफिकेंस लेवल की बात कर रहा हूँ तो पूरा 5% मेरा इस साइड होगा, और पूरा 5% मेरा इस साइड होगा तो उधर भी पूरा 5% होगा, क्योंकि मेरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली डिवाइडेड है, पूरा मतलब सिमेट्रिक डिवीजन होता है इसके बीच में। देखो बीच में जो एरिया बचेगा वो होगा 90%। तो अगर आप वन साइडेड टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप वन साइडेड टेस्ट कर रहे हैं और आपने सिग्निफिकेंस लेवल अगर आपने 5% लिया हुआ है, ठीक है, तो आपका कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस इंटरवल जो होगा वो कितना होगा, 100 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 2 स्टार 5, जितना भी आपका सिग्निफिकेंस लेवल है, ठीक है, उसमें से माइनस कर दो, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 100 माइनस 2 स्टार 5 इन दिस केस, और ये हो गया 90। तो सिग्निफिकेंस लेवल और कॉन्फिडेंस इंटरवल लेवल जो है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट तो होते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ टू साइडेड टेस्ट के लिए, वन साइडेड टेस्ट के लिए वो कॉम्प्लीमेंट नहीं होते। तो अगर मुझे कभी भी पता लगाना हो कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कितना कैलकुलेट करना है मुझे टू साइडेड टेस्ट के लिए, तो मुझे हमेशा एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि चीज़ों को क्लियर कर देगा मेरे लिए, कि सी आई इज इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा, अल्फा, या फिर अगर आप परसेंटेज में लेते हो तो 100 माइनस अल्फा, अगर आप 5% बोलते हो तो 100 माइनस 5 करोगे, अगर आप फ्रैक्शन में लेते हो तो 1 लिखोगे, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप वन साइडेड टेस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो वन साइडेड टेस्ट के लिए आपका सी आई का फॉर्मूला होगा हमेशा 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा, 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल इसमें 2 टाइम्स ऑफ अल्फा से घट जाएगा, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस लेवल और कॉन्फिडेंस लेवल के बीच में ये इनके बीच में रिलेशन होता है, और इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, और इनका जो डिपेंडेंस है वो डिपेंड करता है कि हम टू साइडेड टेस्ट कर रहे हैं या फिर वन साइडेड टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, टोटली इसी चीज के ऊपर डिपेंड करता है हमारा। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक की आज की, क्योंकि टी टेस्ट मुझे लगता नहीं हो पाएगा, ऑलमोस्ट इट्स 5 o'clock, so we are going to do the last topic which is quite short, कि what is the statistical significance and what is practical significance। ठीक है, कई बार चीजें हमारे लिए स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट होंगी, सिग्निफिकेंट होने का मतलब ये है कि पी वैल्यू सिग्निफिकेंस लेवल से कम होना, यानी कि ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस जो है उसका उसके फेवर में हमारा सिग्निफिकेंस लेवल आना, ठीक है, दिस इज व्हाट बेसिकली मींस अ रिजल्ट टू बी सिग्निफिकेंट, ठीक है, अगर इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो टॉपिक का नाम है प्रैक्टिकल वर्सेस स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस। अब क्या होता है कि अगर मेरे पास सैंपल साइज बड़ा हो, ठीक है, तो पॉइंट एस्टिमेट और नल वैल्यू का जो डिफरेंस है वो काफी आसानी से मालूम पड़ जाता है। लेकिन अगर मेरा सैंपल साइज बड़ा होने के बजाय बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाए, लेट्स सपोज कि मैं 1000 पॉपुलेशन मेरे पास जिस चीज के लिए टेस्ट कर रहा हूँ, लेट्स सपोज कि आई एम टेस्टिंग फॉर दो स्पीशीज विच आर प्रीटी क्लोज टू एक्सटिंक्ट, जिनको कि हमने बोल दिया कि ये एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, तो ऐसे एनिमल्स बहुत ज्यादा नहीं है। तो लेट्स सपोज ऐसे एनिमल्स का जो नंबर है वो 1000 है, और मैं अपने लिए जो सैंपल ड्रॉ कर रहा हूँ वो 900 का कर रहा हूँ, ठीक है, 1000 मेरा पॉपुलेशन साइज है और मेरा सैंपल साइज कितना है, 900 है, विच इज रियली लार्ज, राइट। तो अगर मेरा सैंपल साइज सिग्निफिकेंटली काफी ज्यादा बड़ा हो जाए तो वो फिर मेरा जो रिजल्ट निकल के आएगा ना वो स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट तो हो सकता है एक बार,
लेकिन जरूरी नहीं है कि वो प्रैक्टिकल लाइफ में, रियल लाइफ में भी वो प्रैक्टिकली सिग्निफिकेंट हो। ठीक है, और इस बात को समझने के लिए ना हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल इस बात को काफी अच्छा और बस यही स्टेटमेंट है इस पर्टिकुलर टॉपिक का, कि कई बार चीजें स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट होंगी लेकिन वो प्रैक्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं होंगी। और कई बार क्या होता है, जैसे कि कई बार मैंने देखा है कि कुछ न्यूज़ रिपोर्टर्स या फिर बहुत सारे लोग जो कि अपना कोई रिपोर्ट पब्लिश करना चाहते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, चीज़ों को स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट दिखा देते हैं कि हमने ये रिजल्ट निकाला है और ये काफ़ी स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। जैसे कि अभी कुछ वक्त पहले आर्यन सिविलाइजेशन की बात की गई थी कि आर्यन सिविलाइजेशन जो है वो इंडियंस जो है वो आर्यंस के डिसेंडेंट हैं, और ये लोग बाहर से आए थे और बाहर से आके इंडिया में बस गए थे। तो anybody who belongs to who has the genes of Aryans in their genetic order, तो वो लोग एक्चुअली में नेटिव इंडियंस नहीं है, नेटिव लोग नहीं है इस पर्टिकुलर लैंड के, ऐसा एक क्लेम रखा गया था। पर किसी ने भी उस क्लेम के बारे में प्रॉपरली स्टडी करके ये जानने की कोशिश नहीं की कि उसका स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस क्या प्रैक्टिकली भी सिग्निफिकेंट था, क्योंकि उस चीज की होने की प्रोबेबिलिटी लाखों में एक थी, यानी लाखों में से एक चांस था कि आर्यंस बाहर से आए थे हमारे पास। तो ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ, क्यों कई बार चीजें स्टैटिस्टिकली तो सिग्निफिकेंट होती है ऑन पेपर पे, पर रियलिटी में वो सिग्निफिकेंट नहीं होती। और इसका टोटल जो चीज डिपेंड करती है वो डिपेंड करता है सैंपल साइज के ऊपर कंप्लीटली, कि कोई चीजें सिग्निफिकेंट प्रैक्टिकली तो सिग्निफिकेंट है लेकिन हमारे पास जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग सिग्निफिकेंट नहीं है। कुछ कई बार ऐसा भी हो सकता है, कई बार होगा कि स्टैटिस्टिकली तो सिग्निफिकेंट है लेकिन प्रैक्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं है। तो इन दोनों चीजों को नजर करने के लिए एक ही एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक हमारा पॉइंट दोनों को क्लियर कर देगा। ठीक है, कि लेट्स सपोज के जितने भी हमारे पास स्टैटिस्टिक है एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, जैसे कि मीन हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, वो इक्वल है। ठीक है, और मेरे पास दो डिफरेंट सैंपल साइज है। ठीक है, एक का सैंपल साइज है 100 और दूसरे का सैंपल साइज है मेरे पास 10,000। ठीक है, मेरे पास N1 है 100, N2 है मेरे पास 10,000, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मीन, ठीक है, विच बेसिकली मीन्स कि μ1 इज इक्वल्स टू μ2। ठीक है, और स्टैंडर्ड एरर 1 इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड एरर 2, मैं ये बात मान के चल रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू भी ले लेते हैं एक्चुअली 2, और हम म्यू की वैल्यू लेते हैं 50 है। ठीक है, कुछ नंबर होगा तो हमारे लिए काम करना आसान हो जाएगा। ठीक है, 49.5 ले लिया हमने, और हमने सैंपल में ले लिया कि 50 जो हमने म्यू की वैल्यू ली है। ठीक है, यहाँ पे ना एक्स ले लेते हैं, एक्स एक्चुअली। ठीक है, मीन भी बराबर है, हम ये मान के चल रहे हैं कि दोनों के लिए मीन 49.5 के बराबर है, 49.5। और एक हाइपोथेसिस फॉर्म कर लेते हैं इसके बेसिस पे कि एच नॉट जो हमारा नल हाइपोथेसिस है वो क्या कह रहा है कि म्यू इज इक्वल्स टू 49.5, और मैंने ऑल्टरनेट क्या रख लिया कि म्यू इज नॉट इक्वल्स टू, या फिर ग्रेटर देन ले लेते हैं आसानी के लिए, ग्रेटर देन 49.5। ठीक है, कि ये 49.5 से बड़ा है। ठीक है, और मेरा जो पॉइंट एस्टिमेट है विच इज एक्स बार, वो निकल के आया है हमारे पास 50। ठीक है, वो हमारे पास 50 है, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है हमारे पास, स्टैंडर्ड डिविएशन ले लेते हैं इसको सिंप्लिसिटी के लिए। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो हमारा कितना है, वो 2 है। ठीक है, तो अब अगर मैं इसके लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेट करने की, या फिर मैं जी स्कोर कैलकुलेट कर लेते हैं सीधा, टेस्ट स्टैटिस्टिक जी इज इक्वल्स टू जो हमारा 50 है विच इज द ऑब्जर्वेशन दैट वी हैव मेड, माइनस नल वैल्यू विच इज 49.5, 49.5। ठीक है, इस टोटल को हम डिवाइड करते हैं स्टैंडर्ड एरर से। स्टैंडर्ड एरर क्या है हमारा, स्टैंडर्ड डेविएशन फर्दर डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है जो हमारा n है। ठीक है, n की पावर 0.5 से, 0.5 से, यानी स्क्वायर रूट ऑफ n से डिवाइड हो रहा है। ये हमारे लिए फॉर्मूला है यहाँ पर, राइट। तो इस चीज को मैं रीराइट कर सकता हूँ, ये चीज मेरी नीचे से ऊपर चली जाएगी, राइट, अकॉर्डिंग टू डिवीजन, डिवीजन के अंदर डिवीजन है ये। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ अभी कि 50 माइनस 49.5 इज 0.5 डिवाइडेड बाय 2, अभी चलो सिंपल ही रखते हैं, डिवाइडेड बाय
सबसे पहले n इज इक्वल्स टू 100 के लिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100 टू द पावर 0.5, ठीक है। 100 टू द पावर 0.5, तो 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10, तो मेरा z क्या हो जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाय 10, जिसको मैं दोबारा से लिख सकता हूँ 0.5 डिवाइडेड बाय 0.2, ठीक है, विच कैन बी रिटन एज z इज इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 2.5, राइट। तो अगर मेरा सैंपल साइज n इक्वल्स टू 100 है तो उसके लिए मेरा z जो टेस्ट स्टैटिस्टिक है z स्कोर की वैल्यू आई 2.5, लेकिन अगर मैं n की वैल्यू 10,000 लेके सॉल्व करता हूँ सेम चीज को, ठीक है, आई एम गोइंग टू कॉपी दिस लाइन हियर फ्रॉम हियर टू हियर। सेट की वैल्यू अब मैंने क्या रखा 100 के बजाय मैंने रख दिया इसको 10,000, तो अब मेरी वैल्यूज में चेंज आना शुरू हो जाएगा, और वो चेंज क्या होगा ये देखो, 10,000 का स्क्वायर रूट क्या होता है 100, इसका मतलब z इक्वल्स टू कितना हो गया 0.5 डिवाइडेड बाय 0.02, विच मीन्स z इज इक्वल टू 25। तो मेरा z की जो वैल्यू है वो 2.5 से एकदम से कितनी बढ़ गई 10 गुना बढ़ के 25 हो गई, और z इक्वल टू 25 के लिए हमें मालूम है कि जो p वैल्यू निकल के आएगी ना वो ऑलमोस्ट इक्वल्स टू जीरो होगी, ऑलमोस्ट इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, ऑलमोस्ट जीरो होगी, हम लोग कहेंगे जीरो होगी, ऑलमोस्ट जीरो होगी, ठीक है। लेकिन 2.5 के लिए मेरी जो वैल्यू होगी उसका कुछ परसेंटेज होगा कि लेट्स सपोज उसका 10% हो सकता है, या फिर हम जी स्कोर के टेबल में ही देख लेते हैं 2.5 के लिए क्या वैल्यू है। 2.5 के लिए जो वैल्यू है वो है 0.9953, विच मीन्स कि 0.0047, ठीक है, 0047, 0047 विच इज लाइक लेस देन 1%, ठीक है, लेस देन 1% हो गया ऑलमोस्ट, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 0.47%, ठीक है। इसकी इसका जो परसेंटेज है वो 0.47 आधा परसेंट निकल के आया, ठीक है। पी वैल्यू जो है वो 0.47 निकल गई, मतलब परसेंटेज में भी 0.47 आया, और इसका परसेंटेज में भी जो वैल्यू होगा वो जीरो के बराबर होगा, ऑलमोस्ट जीरो के करीब होगा, यानी लाखों जीरो के बाद एक शायद नंबर हो, कुछ ऐसा नंबर होगा। तो अब क्या हुआ सैंपल साइज के बढ़ते के साथ ही सेम स्टैटिस्टिक के लिए जो मेरी पी वैल्यू है वो वेरी कर गई। अगर मेरा सैंपल साइज अगर मैं कम कर दूं, लेट्स सपोज अभी मैंने 100 यूज किया था, राइट, तो मैं सैंपल साइज उसकी जगह अगर अब मैं 10 कर दूं तो मेरा चीजें और चेंज हो जाएंगी, राइट, उसके लिए पी वैल्यू जो मेरी है वो अलग हो जाएगी। तो यहाँ पे सैंपल साइज 10 ले लेते हैं, राइट। अगर मेरा सैंपल साइज 10 है तो 10 का स्क्वायर रूट क्या होता है लगभग 3 पॉइंट समथिंग होता है, राइट, 2 डिवाइडेड बाई 3 पॉइंट, लेट्स सपोज 3.1 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा लगभग 3.1 इंटू 0.5, 3 5 या 15, 155, 1.55 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 0.78 के आसपास आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू है वो क्या हो गई अभी चेंज होकर के 0.78 लगभग राउंड ऑफ करके, ठीक है। तो जी की वैल्यू 0.78 होगी, और 0.78 के लिए जो वैल्यू होती है वो है हमारे पास 0.7823, यानी अगर आप उसको 1 में से माइनस करते हो तो 1177, ठीक है। तो ये हो गया 0.1177 विच बेसिकली मीन्स 11.77%। तो सैंपल साइज अगर आपका बहुत छोटा है तो आपका अगर इवन दो आपका रिजल्ट जो है प्रैक्टिकली सिग्निफिकेंट होगा, लेकिन आपका सैंपल साइज अगर छोटा है तो वह स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं रहा, क्योंकि 5% से ज्यादा हो गया, राइट। अगर आपका सैंपल साइज बहुत ज्यादा है, ठीक है, जैसे 10,000 है, और आपका डेटा भले ही प्रैक्टिकली सिग्निफिकेंट ना हो, लेकिन आपने सैंपल साइज इतना बड़ा ले लिया कि आपकी पी वैल्यू छोटी आ गई और आपका रिजल्ट स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट बन गया। तो सैंपल साइज के बेसिस पे हम अपना रिजल्ट वेरी करा सकते हैं, और अगर किसी को मुझे स्टैटिस्टिकली बेवकूफ बनाना है तो वो क्या करेगा, वो इसी तरीके से बेवकूफ बना देगा अपना सैंपल साइज बड़ा या छोटा करके। अगर वो चाहता है कि उसको गलत चीज को सही प्रूव करे और वो नल हाइपोथेसिस सही है, लेकिन उसके बाद भी वो चाहता है कि ऑल्टरनेट को सही करना है मुझे, तो उसको कुछ नहीं करना, सैंपल साइज बड़ा कर देना है बस, क्योंकि जी स्टैटिस्टिक जो हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक कैलकुलेट हो रहा है वो स्टैंडर्ड एरर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। स्टैंडर्ड एरर को अगर मुझे छोटा करना है, जितना छोटा मेरा डिनोमिनेटर की वैल्यू होगी उतना ही बड़ा मेरा न्यूमरेटर से वैल्यू मतलब डिवाइड करने के बाद आएगा, राइट।
तो सैंपल साइज के ऊपर मेरा काफ़ी कुछ डिपेंडेंस होता है कि प्रैक्टिकली सिग्निफिकेंट चीज़ हमारे स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट भी है या नहीं, या फिर कोई चीज़ हमने स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट बोली है तो क्या वो प्रैक्टिकली सिग्निफिकेंट भी है या नहीं। इसीलिए हमें सैंपल साइज जो कि हम जो 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 भी पर्सन रिसर्च कर रहा है वो खुद डिसाइड करता है, तो उसको हमेशा सैंपल साइज सोच समझ के डिसाइड करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि सैंपल साइज भी काफ़ी बैलेंस हो। ठीक है, सैंपल साइज निकालने का भी एक प्रायरी के थ्रू तरीका होता है, विच आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस हियर, विच इज बियॉन्ड दिस कोर्स राइट नाउ टू बी ऑनेस्ट। बट सैंपल साइज स्टैटिस्टिशियन कुछ अलग तरीके से कैलकुलेट करते हैं बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेरिएबल दैट दे आर स्टडीइंग, के कितने सैंपल की ज़रूरत है उन्हें, डिपेंडिंग अपॉन कौन कौन से फीचर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं वो अपने इस एनालिसिस के लिए, अपने इस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए या फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए। ठीक है, तो आई होप कि अभी आप लोगों को क्लियर हो कि सैंपल साइज क्यों बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, क्यों बहुत ज़्यादा छोटा भी होना चाहिए। अदरवाइज वो हमारे रिजल्ट को इम्पैक्ट कर देगा कि सिग्निफिकेंस जो हमारा निकल गया है रिजल्ट का, कि वो ऑल्टरनेट को फेवर करना है या नहीं, या फिर नल को रिजेक्ट करना है या नहीं, वो उसको इफेक्ट कर देगा अगर सैंपल साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है बहुत ज़्यादा छोटा हुआ तो। ठीक है, तो आई वाज होपिंग टू डू द टी स्टैटिस्टिक एज वेल टुडे, टी डिस्ट्रीब्यूशन, बट द टाइम इज अ लिटिल वे टू मच फॉर नाउ। तो नेक्स्ट क्लास में हम टी स्टैटिस्टिक्स करने वाले हैं और उसके साथ में बूटस्ट्रैप, अनोवा और काई स्क्वायर टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि काई स्क्वायर टेस्ट भी नेक्स्ट क्लास में ही खत्म हो जाए, क्योंकि ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें। नहीं होता है तो फिर नेक्स्ट क्लास के बाद सैटरडे वाली क्लास में शुरुआत के आधा एक घंटे में काई स्क्वायर टेस्ट वाला एक पार्ट खत्म कर देंगे, और फिर पांडा से थोड़ा सा हिस्सा बच चुका है तो हम उसको भी फिनिश करने वाले हैं, जिससे कि जो नेक्स्ट वीक आएगा हमारे पास, नेक्स्ट यानी अगले हफ्ते के बाद, इस मंडे के बाद जो अगला मंडे आ रहा है, ठीक है, उस मंडे से हम लोग अपना प्रैक्टिकल एनालिसिस करना शुरू करते हैं। हम लोग मशीन लर्निंग के एक एल्गोरिथम पढ़ेंगे, इसमें लीनियर रिग्रेशन होगा, ठीक है, लीनियर रिग्रेशन, और आई एम गोइंग टू गिव यू अ लाइट डिटेल अबाउट न्यूरल नेटवर्क्स, के न्यूरल नेटवर्क्स कैसे काम करते हैं, क्या होते हैं। ठीक है, वो मंडे की क्लास में होगा, और ट्यूसडे और वेंसडे को हम दोनों दिन बैठ के, ट्यूसडे को हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे और सैटरडे को हम दूसरा प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो आई होप कि आप तब तक अपना स्टैटिस्टिक वाला पार्ट, हालांकि ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होने वाला है, बट आई होप कि आप लोग को ये पार्ट क्लियर हो जाए और आप लोग पांडास, जो कि हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं काफ़ी टाइम पहले, और रिक्वायरमेंट के अनुसार हमने काफ़ी कुछ पढ़ा, और थोड़ा बहुत अभी भी डेटा रैंगलिंग वाला पार्ट उसका बाकी है, तो हम उसको फिनिश करेंगे सैटरडे वाली क्लास में। तो आई होप कि आप लोग पांडास को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि जैसे पहले भी बोला था मैंने कि अगर आपने पूरा पाइथन अच्छे से नहीं पढ़ा है तो भी चलेगा, लेकिन अगर आपने पांडास अच्छे से नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो आई होप कि आप लोग पांडास को अच्छे से रिवाइज पढ़ो और रिवाइज करो, और जो आगे सिखाया जाएगा उसको ध्यान से सीखो। प्लस डेटा विजुअलाइजेशन के लिए वी हैड मैटप्लॉटलिब्स एंड सीबॉर्ड, तो आई होप कि आप लोग उसकी भी प्रैक्टिस करके रखो, क्योंकि उसकी भी जरूरत पड़ेगी, हम लोग डेटा को विजुअलाइज भी करेंगे। ठीक है, और स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो मैंने नॉर्मलाइजेशन मेथड्स पढ़ाए थे उनका भी हम इस्तेमाल करेंगे अपने डेटा के अंदर। तो आई होप कि आप लोग चीज़ों को प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि यही 2 हफ्ते हैं, इन 2 हफ्ते के बाद आपका कोर्स खत्म हो जाएगा, एंड देन यू विल बी फ्री। तो फ्री होने से पहले अगर क्योंकि सीखने ही आए थे कुछ कोर्स, तो सीख के जाओ। ठीक है, एंड दिस विल वेट फॉर दिस क्लास, आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग। अगर आपके पास कुछ सवाल है तो आप अपने सवाल पूछ सकते हैं।